I was 22 or 23 then, right? 23 then. So उस समय पे पहली कमाई से अपने गांव में पहला पुस्तकालय खोला। ठीक है, विजन क्या था? वही बचपन की टीस। ठीक। कोविड आया। अब जब कोविड आया तो हमने अपना एनजीओ रजिस्टर नहीं कराया था, तो शान नाम से ही हमारा सारा वो चलने लगा। मतलब एज इन हम जो भी काम कर रहे थे, वी फेड अराउंड 6 लाख पीपल्स इन गुड़गांव। ठीक है, तो वो सब कोविड में हुआ और वो शान नाम से चलने लगा, तो वहां से लोग शान फाउंडेशन करने लगे। बट देन हमें लगा कि हमें एनजीओ रजिस्टर कराना पड़ेगा। Why Shan? सो एक ये था कि भाई हम एक डिग्निफाइड लाइफ देना चाह रहे हैं लोगों को। ठीक है, मतलब गांव का बच्चा जिसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जो ये इमेजिन ही नहीं कर पाता कि मैं भी कलेक्टर बन सकता हूं, मैं भी डीएम बन सकता हूं, जिसकी सोच ही वहां तक नहीं है, उसको डिग्निफाइड ड्रीम्स देने। यार, आप कई बार ये कहा जाता है कि आप सपने जितने ऊंचे देखेंगे उतना ही ऊपर आप जाएंगे। भले ही आप ये देख रहे हैं तो आप वहां ना पहुंच पाए, यहां तो पहुंचेंगे, बट आप वहां तक देख ही नहीं रहे हो तो आप कहां पहुंचोगे ना। It's not how much we give, but how much love we put into giving. For it is in giving that we receive. Look for the silver lining whenever a cloud appears in the blue. Bharat is not just a geographical concept. It is a cultural and spiritual identity. Today, I am in conversation with Mr. Anurag Trivedi ji. I would call him a change agent, a change maker, and a true citizen of Bharat. Hello and welcome to a very special episode of Between Us, Make Every Conversation Count. Anurag ji, thank you for being on the show. It's an absolute pleasure. Thank you for having me. Anurag ji, let's begin with Bharat. What does Bharat mean for you? So, Bharat is composed of two words. First is Bha. So, the actual meaning of Bha is light or knowledge. And Rath is, you are immersed in something, right? So, Bharat translates into a country, a landmass that is immersed in the process of knowledge. And Bharatiya, by the virtue of it, is every citizen who is constantly striving to be better in pursuit of knowledge. So that is Bharat for me. जहां पर हर व्यक्ति ज्ञान के परस्यूट में लगा हुआ हो, वो भारत है. Okay. Would you say that pursuit of knowledge, मेरे लिए pursuit of knowledge was yesterday's launch of Chandrayaan 3. I think that is another super success of Bharat, pursuit of knowledge. But we have always been like this from the very beginning, right? देखिए, पिछले 7,000 सालों में जी. भारत ने एक बहुत सिंपल सी चीज को एडवोकेट किया है. That is Atma Sarva Bhuteshu. And yesterday's Chandrayaan is also another, part of that chain. So Atma Sarva Bhuteshu means, it simply means that मैं सभी को अपने जैसा देख रहा हूं. जी. I am seeing myself in everybody. That is Atma Sarva Bhuteshu. जी. जब भारत चंद्रयान पर जा रहा है तो भारत बोल क्या रहा है कि दिस इज फॉर ह्यूमैनिटी. भारत जब कोविड में लोगों को वैक्सीन भिजवा रहा है, वो क्या बोल रहा है? दैट इज फॉर ह्यूमैनिटी. भारत जब रिसर्च कर रहा है या दूसरे कंट्रीज से लोगों को बचा रहा है, तो वो क्या कह रहा है? दैट इज फॉर ह्यूमैनिटी. The world is one family. The world is one family, जी. right? So even when we are hosting G20, that is what we are saying. जी. So we need to understand one thing, that when you say Bha, chasing the light, chasing the knowledge. So what knowledge means? Knowledge cannot be confined to shallow areas of a landmass or a caste or a creed or a religion. Knowledge is something that is beneficial for all of us. Absolutely. Right? जी. So that is the purpose and that is the goal of Bharat, and that is something that will make Bharat great again. Absolutely. But Bharat is great, Anurag ji. We are the greatest to my mind. Yes. And Yes. I have a lot of things to cover today, but I want to begin with right from the very beginning, your growing up years,
and how that shaped you to where you are today. Uh, so as I was telling you before we started the podcast, when India was rolling the carpets to US president, when the world was turning into the new millennium, when China was getting into the WTO, I as a 5-year-old kid was holding the door of my home in my village, and I was crying, and I was saying that I don't want to leave my home, I don't want to leave my village. So I was sent away for education because our village did not had the facilities for education, and like every other parent, my parents also wanted me to have good education. But I had to leave my family, I had to leave my village. And leaving your family, leaving your village is leaving your roots, leaving your home, leaving your values. So that is one thing that has shaped, that is the first thing and the most important thing that has shaped me. And whatever I am doing today, it is just with one goal, you know. कोई और अनुराग, कोई और लड़का अपने घर, अपने गांव, अपनी जड़ों, अपने कल्चर, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने बुजुर्गों, अपने गांव, अपने खेत, अपने खलिहान को ना छोड़े. हम्म। तो जो जो भी मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ उस वजह से है. आपकी एज क्या थी उस वक्त? So I am 27 December 1994, so I was 5 years. So at the age of 5 I left my home. Any memories during those 5 years in the village? कुछ आपकी यादें हैं अभी आप रहती है, कुछ भी है? हाँ, बहुत बहुत. I might get emotional because this is one of my most sensitive part of my life. So Anurag ji, this is a absolute safe space. We are about that, so please feel free. So जो पहले 5 साल थे, हम एक ज्वाइंट फैमिली में रहते थे जी. भगवान की दया से अभी भी ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं गांव में. मेरे बाबा गांव के सरपंच थे, बट ऐसा कुछ नहीं था कि सरपंच है तो बहुत पैसा हो गया अब, क्योंकि बाबा का पूरा जीवन गांव की सेवा में लगा. दादी मेरी ऐसी थी कि वो हर एक बंदे के बारे में सोचना, गांव में क्या हो रहा है, किसके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसकी चिंता करना. तो जब पहले जो 5 साल जीवन के थे वो ऐसे थे कि आई वाज ट्रीटेड लाइक अ प्रिंस. मतलब वो जो जी. पहले 5 साल थे कि आप घर में, मतलब चूंकि पापा बड़े थे और मैं बड़ा था, मतलब मैं 2 भाई, जी. छोटा भाई है मेरा. तो वो उन 5 सालों में मतलब कुछ भी मांगा जाए तो आपको एकदम सब कुछ प्लेटर पे मिल रहा है, और बहुत मतलब जो भी जितने भी संसाधन घर में थे, जो भी जी. रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज वी हैड. सो वो पहले 5 साल मतलब दैट वाज बेस्ट. मतलब कभी भी मैं लोगों से बात करता हूँ तो वो चूल्हे की रोटी, वो गुड़ की राब, वो बैलगाड़ी पे बैठ करके अपने अपने खेत में जाना, वहां पर आम की बाग में आम खाना. अब मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो आम की बाग खत्म हो गई है, खेत में जाने वाले लोग नहीं हैं. जिस खेत में जो छोटी सी झोपड़ी थी, जहां पूरा परिवार, जब गेहूं की रोपाई होती थी, वहां पूरा परिवार जाता था, एक साथ बैठ करके खाना बनता था, वो कम्युनिटी फीलिंग खत्म हो रही है. आप समझ रहे हैं? मतलब मैं अपने बेटे को क्या दिखाऊंगा, मैं उसे क्या दिखाऊंगा कि मेरा गांव कैसा था, मेरे लोग कैसे थे. फील द पेन, बिकॉज सी मैं अकेला नहीं हूं यार. मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों युवा ऐसे होंगे जो इस दर्द को झेल रहे होंगे, जिन्होंने इस दर्द को, आप बिहार की बात करिए, आप उत्तर प्रदेश की बात करिए, हम लोगों को बोल दिया जाता है कि हम बाहर किसी दूसरे राज्य में पढ़ने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं. कितना दर्द होता है हमें जी. अपने घर को छोड़ करके जाना, अपने माँ बाप को छोड़ करके जाना. मैं आज यहाँ गुड़गांव में हूँ, मेरे माता पिता, मेरा ज्वाइंट फैमिली गाँव में है, ठीक है. मैं आज मतलब आई एम डूइंग वेल, राइट. इफ आई वांट आई कैन गो बैक टू देम, बट नहीं जा रहा हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे अपने बारे में नहीं सोचना. सिर्फ मेरे जैसे लाखों करोड़ों अनुराग अपना गाँव ना छोड़े. जो पहले दिनों की मेमोरीज आप बात कर रहे हैं, तो बहुत समृद्ध मेमोरीज हैं. मतलब जी. जितना मुझे याद है, फिर अब जितना मैं अपने चाचा से, अपने बाबा से बात किया, और जितना उन्होंने मुझे बताया, जितनी चीजें मैंने सुनी, तो एक ऐसा जीवन था जहाँ द्वेष नहीं था, ईर्ष्या नहीं थी, जहाँ कपट नहीं था, जहाँ साथ में बैठ के खाना बन रहा है, रोटियां बन रही हैं. लोग कई बार कहते हैं जात, ये वो, कुछ नहीं था यार. कहाँ, मतलब कम से कम हमने अपने बचपन में जो खेत में काम करने वाले हैं, उनका भी खाना वहीं बन रहा है, वो भी वहीं खा रहे हैं, हम लोग भी वहीं खा रहे हैं. तो हमारे लिए सब चाचा थे जी. हमारे लिए सब मामा थे. तो हम
उस धरती से उस संस्कार को लेकर के आए हैं। जी। तो मेरे जीवन का जो उद्देश्य है, जिस भारत की आपने बात करी ना, जी। तो मैं अक्सर कहता हूं कि देखिए, नॉलेज लिटरेसी नहीं है यार। ट्रू। नॉलेज लिटरेसी नहीं है। हो भी नहीं सकती है। हाँ, मेरे बाबा का जो नॉलेज है ना, वो मतलब किसी भी बहुत एकेडमिकली साउंड पर्सन से बहुत ऊपर है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 75 साल गांव को संभालने में दे दिए, 50,000 लोगों के जीवन को संभालने में दे दिए, तो उसके उसके एक्सपीरियंसेस से बड़ा कोई मतलब एकेडमिक ज्ञान होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट अगर आप कंपेयर करें, बिल्कुल। तो मेरे लिए जो भारत है वो गांव का वो ज्ञान है, गांव के वो संबंध हैं, गांव की वो एक सोशल, जिसको हम सोशल कोहेजन बोलते हैं, बिल्कुल। वो मेरे लिए भारत है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये बचपन के जो अनुभव थे ना, मुझे कुछ नहीं बनाना है। मैं बहुत खुलेआम बोल रहा हूँ, मेरे जीवन का एक ही सपना है, मैं जब मेरा देहांत हो तो कम से कम लोग ये कहें कि ये बंदा था जिसने इस देश के 50,000, 1 लाख, 10 लाख जितने भी गांव हैं, 10 लाख हमारे यहाँ गांव हैं, तो जिसने इन इतने गांवों में वापस से गांवों को पुनर्स्थापित कर दिया। ऐसे गांव जहां इंटरनेट भी हो, चूल्हा भी हो। चूल्हे से मेरा मतलब ये है कि वो समुदाय हो। बिल्कुल। अनुराग जी, एट द एज ऑफ 5 यू मूव्ड आउट ऑफ द विलेज। आप कहाँ गए? बहुत बेहतरीन सवाल। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिले में तिरवा नाम का टाउन है। तिरवा 2 है, तिरवागंज और तिरवा खास। तिरवा वाले बुरा ना माने। हाँ। तो तिरवा में गया जी। और मैं अपने पापा की मौसी के पास भेजा गया था। जी। वो तिरवा में रहती थी। जो उनके पति थे, मौसा जी थे, वो टीचर थे। अच्छा। तो मेरी दादी हुई, मतलब मेरी दादी की बहन। जी। तो मैं वहां गया और मेरी एजुकेशन कैसे हुई, वो एक बहुत बेहतरीन चीज है। जी। एक व्यक्ति और है जिसे मैं आज, चूंकि आपके साथ बैठा हूं, तो मैं याद करना चाहूंगा, डॉक्टर गोविंद प्रसाद शुक्ल जी। तो मैं 5 साल का था जब मैंने गांव छोड़ा। उससे पहले मेरी एजुकेशन शुरू हो चुकी थी। ठीक है, मैं अपने गांव की प्राइमरी पाठशाला में जाके बैठता था पार्टी लेके, और वो उससे हम लोग पूरा जो पत्ती आती थी उससे उसको घिसते थे। ठीक है, तो वो देखा है। लेकिन जो मेरी शिक्षा शुरू करने का श्रेय है वो डॉक्टर साहब को जाता है। अच्छा। अब वो भी बड़े इंटरेस्टिंग आदमी थे। वो थे सर्जन। ओके। और उनको था शुगर। तो उन्हें गांव बहुत पसंद था। तो अच्छे खासे पैसे वाले थे। उनका पूरा परिवार रहता था कानपुर शहर में। अच्छा। वो रहते थे गांव में। सिर्फ मंगलवार को कानपुर जाते थे सर्जरी करने। एक सर्जरी करते थे हफ्ते में। अच्छा। ठीक है, जो भी उनको पैसा मिलता था वहां से जाते थे, अपने परिवार से मिलते थे और बुधवार तक वापस गांव आ जाते थे। ठीक है, बुधवार से लेके फिर सोमवार तक वो गांव में रहते थे। ठीक है, हम लोग उनके यहाँ पढ़ने जाते थे, क्योंकि वो पिताजी को मेरे बहुत मानते थे। जी। तो मेरी शिक्षा उन्होंने करी। अच्छा। अब वो ऐसे व्यक्ति थे, सब लोग उनको झंझटी बाबा कहते थे। जी। ठीक है। जी। तो कहने का मतलब कि वो किसी को भी ऐसे ही मतलब हड़का देना या ये कर देना। जी। और ऐसा नहीं है, वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी था। डॉक्टर, सर्जन, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो उनका ये था कि वो सुधारना चाहते थे कुछ, कि मतलब यार तुम लोग सही से नहीं रह रहे हो, तुमको ऐसा करना चाहिए। और पूरे गांव के डॉक्टर थे वो। जी। ठीक है, मतलब क्वालिफाइड आदमी, पूरे गांव में किसी को कोई दिक्कत है उन्हीं के पास जाता था वो। ठीक है, इतना मुझे पढ़ा दिया था, और ऐसा पढ़ा दिया था इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी वगैरह, कि जब मैं तिरवा गया जी। तो मेरा एडमिशन होना था। तो प्रिंसिपल ने मुझसे पूछना चालू करा वो कि भाई किस क्लास में एडमिशन दे। तो उन्होंने कहा 2 का पहाड़ा सुनाओ, 2 की टेबल सुनाओ, 3 की टेबल सुनाओ। तो मैं ऑफेंड हो गया। मैंने, ये क्या पूछ रहे हैं आप, कुछ ढंग का पूछिए। ठीक है, आधे घंटे बाद ये दोनों लोग लड़ रहे हैं। प्रिंसिपल कह रहा है कि मैं इसका एडमिशन 6th क्लास में करूंगा। ये कह रहे हैं कि मैं इसका एडमिशन 1st क्लास में करूंगा, क्योंकि है ही 6 साल का भी। जी। ये था डॉक्टर साहब के दिन। आज वो नहीं है हमारे बीच में। जिस दिन उनका देहांत हुआ, मैं, आप समझिए, 2 दिन तक रोया था। शायद वो ना पढ़ाते तो मेरी शिक्षा का स्तर वैसा ना होता। और मैं बहुत उससे बोल रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का कोटिशः धन्यवाद, जो उन्होंने नई शिक्षा नीति लाई। जी। नई शिक्षा नीति, जब मैं पहले दिन, चूंकि मैं पढ़ाता हूँ, आपको पता है कि मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराता हूँ बच्चों को। अनुराग जी, here we are talking about the NEP, right? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जी। यस। जी। When they came up with national education policy, so I already knew what will be the framework. Why? Because NEP is based on the committee report of Shanta Kumar sir. जी। Right. So
जिस दिन NEP आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी। हम्म। 66 पेजेस मैंने अपनी क्लास में न जाने कितनी बार पढ़ाए हैं, जी। ठीक है। व्हाई? बिकॉज जो मैं एक्सपीरियंस करके आ रहा था ना, वो डॉक्टर साहब की पढ़ाई, वो फ्रेमवर्क जहां पर फोकस लर्निंग पर था, रॉट बिल्कुल। लर्निंग पर नहीं। यही तो NEP की सबसे Yes, इम्पोर्टेंट yes. हाईलाइट है। लिटरेसी, न्यूमरेसी, स्टोरी बेस्ड एजुकेशन, Correct. वो सभी डॉक्टर साहब ने मुझे हाँ। कराई थी। डॉक्टर साहब की बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि अगर उनकी बात मैं ना करता तो मैं इनजस्टिस करता उनके साथ। वो एक क्या चीज है जो आपने इम्बाइब की और आपको लगा कि इट हैज मेड यू द पर्सन यू आर? ऑनेस्टली मैं बताऊं तो जैसे वो टीचर थे ना, हम्म। वो टीचर नहीं थे। हम्म। वो ऐसा लगता था कि कोई आपके दादाजी आपको आपके साथ बैठे हुए हैं। वो जो अपना एक, आप समझो ना, गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है जी। ना, वो बड़ा कोमल होता है। बिल्कुल। वो रिश्ता आज मेरा अपने बच्चों के साथ है। स्कूलिंग के बाद आपने फिर व्हाट वाज द नेक्स्ट राउट? इंजीनियरिंग? तो मुझे याद है मेरे पिताजी ने 9th में मुझसे कहा कि तुम्हारा जो टेम्परामेंट है ना, वो पब्लिक सर्विस वाला है, हम्म। तो तुम इंजीनियरिंग में मत पढ़ना। उल्टा उल्टा, ठीक, कि तुम इंजीनियरिंग में मत पढ़ना, तुम्हारा टेम्परामेंट सिविल सर्विस वाला है। मैं उस समय कोई अपने पिता की बात तो सुनता नहीं है, तो हमने अच्छा ठीक है। 10th खत्म हुआ तो उस समय IIT का क्रेज चल रहा था। हम करेंगे कोचिंग, हम जाएंगे कोटा, हम जाएंगे, कानपुर में होता था काका देव है, हम IIT कोचिंग करेंगे। तो अब हमारे सारे दोस्त IIT कोचिंग करने लगे। हमको लगा हम में ऐसी कौन सी ऐब है कि हम ये नहीं कर सकते हैं। तो चूंकि मेरे सारे दोस्त IIT कोचिंग कर रहे थे, उस भेड़ चाल में मैंने ये गलती करी। मैंने IIT की कोचिंग करनी शुरू करी, ठीक है। और भाई साहब 11th-12th में मैंने कतई पढ़ाई नहीं करी। नंबर्स नेवर लाई, जी। ठीक है। और यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, जी, ठीक जी, है। तो अगर आप 10th तक मेरे मार्क्स देखें, ठीक है। अच्छा, मैं था बड़ा फक्कड़ स्वभाव का, मतलब मुझे नहीं पसंद है तो हम नहीं करेंगे, जाओ। बिल्कुल। मैं मतलब उस टाइप की व्यवस्था थी मेरी, ठीक है। तो अगर आप 10th तक मेरे मार्क्स देखें तो सोशल साइंस में यहाँ, हिंदी में यहाँ, ठीक है, इंग्लिश में यहाँ, मैथ्स में यहाँ और केमिस्ट्री में यहाँ, मतलब ये व्यवस्था थी मेरी। जी। फिजिक्स मुझे पसंद थी, ठीक जी। है। फिजिक्स में मतलब बाद में फिर ऐसा हुआ कि IIT के दौरान टीचर्स अच्छे नहीं मिले, तो वो फिजिक्स आई लाइक्ड, राइट। एंड मैथ्स वाज मतलब माय फोर्टे, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर एंड PNC एंड ऑल दैट। तो बट केमिस्ट्री मुझे नहीं पसंद थी, और नहीं पसंद थी मतलब दुश्मनी की राह तक नहीं पसंद थी, जी। ठीक है, मतलब मेरा वो सिस्टम था। तो गलती ये करी कि मैंने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया अपनी कैरियर चॉइस के दौरान, और सिर्फ दोस्त कर रहे हैं ऐसा है वैसा है उस हिसाब से ले लिया। अच्छा, एक चीज और थी, सो माय टेस्ट वाज नेवर दैट आई कैन वर्क फॉर अ सॉफ्टवेयर कंपनी। इट वाज evident and very clear since my childhood, Okay. because I have been born in a setup where I have seen people solving problems of the society, True. not sitting in a room, going amongst the masses, right? That was my taste, that was my genetics actually. That basically you saw growing up your father. Yeah, as a sir. my grandfather and my father, Huh. right? So that was my genetics, that was जी. imbibed in my genetics, and that was also imbibed in my subconscious, जी. right? So my taste was never that I'll sit in a room and I'll write codes and solve the problems of humanity. They are also doing it fine, but I had to be amongst the masses. That was my calling, right? उन्होंने कहा कि तुम BSc करो और तुम UPSC का देखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो चीज है। तो आई मेड दिस मिस्टेक of pursuing IIT and not looking at the numbers, not looking at myself, right? जब मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि हमारे यहाँ पर एक कहा गया है, जब आप गीता पढ़ोगे तो गीता में एक बहुत बेहतरीन और बहुत सिंपल सा श्लोक है, ठीक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। तो मैं उसकी व्याख्या हमेशा यही करता हूँ कि उसका मतलब ये नहीं है कि आप फल की चिंता ही मत करो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना फल को विजन में रखे आप सिर्फ कर्म करते रहो। ऐसा नहीं कि आप वो ये कह रहे हैं कि विजन लॉस हो जाए, वो ये कह रहे हैं प्रोसेस पर ध्यान दो। जब आप कोई चीज कर रहे हो ना, तो प्रोसेस पर ध्यान दो, और वो प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है? नोइंग सेल्फ से, अपने आप को जानने से। बिल्कुल। मैंने वो गलती करी, मैंने अपने आप को नहीं जाना, मैंने उस डिसीजन में अपनी स्ट्रेंथ्स का ध्यान नहीं रखा। ये सभी युवाओं के लिए है जो आज कोई भी निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो मैंने
तब 12th करा, फिर उसके बाद 1 साल का ड्रॉप लिया, फिर बीटेक करने में बैंगलोर गया, ठीक है। पढ़ने में ठीक-ठाक थे, कॉलेज वॉलेज मिल गया, ठीक कॉलेज मिल गया, बैंगलोर पहुँच गए। बैंगलोर काहे गए थे? अब आप समझो, मतलब मेरा उस समय का माइंडसेट समझो। बैंगलोर का कॉलेज किस लिए लिया था? क्योंकि वहाँ पे हमारे एक स्कूल सीनियर थे, हमारे 3 दोस्त और जा रहे थे। जी। मतलब उस वाली स्थिति में थे बिल्कुल, मतलब समझ रहे हैं? एकदम जिसे हम अब आजकल कहते हैं कि टपोरी वाली उसमें थे कि भाई हमारे 4 दोस्त जा रहे हैं, तो हम 4 लड़के जा रहे हैं, तो उनके साथ हुँ, आई वेंट टू बैंगलोर। हुँ, इंजीनियरिंग शुरू हुई। पहला सेमेस्टर शुरू हुआ। मुझे लगा क्या फालतू पढ़ा रहे हैं? ये सब तो मुझको आता है। मतलब सो आई एम टेलिंग यू दैट मैं ऐसा नहीं था कि कोई पढ़ने में मैं वो था। मैं इंजीनियरिंग करने पहुंचा, मुझे लगा इसका क्या यूज है। हुँ, काइनेटिक्स तो मैं पढ़ करके आया हूँ, बेसिक ये मैथ्स और ये सब तो मैं पढ़ करके आया हूँ। वहाँ नंबर आने चालू हुए, मतलब सीजीपीए भी अच्छा बन रहा है वहाँ पे, हुँ, मतलब 8-9 सीजीपीए बन रहा है और बिना पढ़े। हुँ, मतलब अब थोड़ा हम गंभीरता में बैठे हुए हैं, तो मेरे कॉलेज के दोस्त मुझे गरियाए नहीं, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ मैं पढ़ता वढ़ता नहीं था। फुल मस्ती होती थी। हुँ। अगर 2 बजे से पेपर शुरू होना है, तो हम लोग पूरी रात बैठ करके रूम के अंदर ये माहौल बनाते थे कि पढ़ना शुरू कब से करना है। बस मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। जी। सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक पढ़ता था हुँ, और उस समय पे जाम लग जाता था कि हम 4 दोस्त अपने रूम के बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई निकलेगा नहीं। हुँ, बस 12 बजे तक पढ़ते थे, खाना-वाना खाते थे, 2 बजे पेपर देने चले जाते थे, हुँ। बढ़िया नंबर आते थे। जी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि यू शुड नॉट किसी भी कोई भी बच्चा जो इंजीनियरिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, आपका ध्यान कभी भी इस पर नहीं होना चाहिए हुँ, कि मतलब मैं बस ये करने के लिए कर रहा हूँ। जी। आपकी लर्निंग क्या है? मैंने इंजीनियरिंग क्यों छोड़ी? हुँ, मेरा पहला सेमेस्टर खत्म हुआ, मुझे लगा मैंने क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। हुँ, मैं 4 साल बाद प्लेसमेंट का दौर शुरू हुआ। मेरे सीनियर प्लेसमेंट में जाने लगे, तो मुझे मुझे पता नहीं था, ठीक है? मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था बीटेक के बाद क्या करते हैं। हुँ। मतलब मैं उस ज़ोन में था। जी। अब आप सोचो ना यार, 2011-12 का टाइम है, हुँ, इंटरनेट उतना आया नहीं था, है ना? आप सुनते थे खाली कि इंजीनियर होते हैं, है ना? वो कंप्यूटर में बैठते हैं, ऐसे एसी कमरे होते हैं, वो वाला माहौल था। आजकल तो सब बहुत। तो प्लेसमेंट चल रहा था, मैं एक सीनियर के पास गया, मैंने कहा भैया ये बताओ, मैंने कहा आपकी नौकरी लगी कि हाँ, मैंने क्या करोगे? तो उनका जवाब पता क्या था? यार पता नहीं। मैंने कहा बड़ी आफत है। दैट इज़ व्हाट सेट यू थिंकिंग। यस। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं है 5 साल बाद मैं क्या करूंगा, 4 साल हुँ, बाद मैं क्या करूंगा। हुँ, दैट इज समथिंग जिसने मुझे कुछ अलग करने पर सोचने पर मजबूर किया। हुँ। तो क्या ये क्राइसिस नहीं है? बिल्कुल है। तो आप वहां से मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो फिर हुँ, मैंने अपने कुछ सीनियर्स को पकड़ा जो जॉब कर रहे थे, मैंने कहा भैया क्या करना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं? हुँ, उन्होंने कहा बेटा देखो, तुम्हारे लिए ये दुनिया नहीं है। हुँ, यहाँ मैं 8 बजे निकल रहा हूँ, 7 बजे लौट रहा हूँ, बहुत बेसिक सा कुछ कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता उसका एंड रिजल्ट क्या है, मेरा इम्पैक्ट क्या है। हुँ, नाउ इन माई स्टोरी यू विल फाइंड वन थिंग दैट विल बी ऑलवेज देयर। हुँ, 5 साल की उम्र से और आज तक मुझे लोगों के बीच रहना था, हुँ, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी और मुझे मुझे डेली रात, हर रात वो प्रॉब्लम सॉल्व करके सुकून से सोना था। बहुत सिंपल है। इम्पैक्ट। इम्पैक्ट तो क्या किया जाए, तो मुझे चाहिए था इम्पैक्ट। अब उस समय पर इम्पैक्ट यूपीएससी, जी। राइट? बट आई न्यू वन थिंग कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। हुँ, ऐसा नहीं है, मेरी उम्र उसमें 17 साल थी, मतलब मैंने 18th बर्थडे अपना कॉलेज में मनाया था, हुँ, ठीक है? तो ऐसा नहीं था कि प्रिपेयर्ड का मतलब कि 18 साल की उम्र में कोई प्रिपेयर हो जाता है। हुँ, बट मेरे लिए हमेशा से, मैं देखिए इस बात पे बहुत, अब मैं हम यूपीएससी वाली जर्नी पर आ रहे हैं, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, मेरे लिए नॉलेज बहुत ज़रूरी था यार। जी। मुझे लगा कि मैं इंटेलेक्चुअली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, हुँ, ठीक है? मैंने बीटेक छोड़ा। अच्छा, बीटेक छोड़ने का भी मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा। तो सेकंड सेमेस्टर खत्म हुआ हमारे कॉलेज में, मतलब वो चल रहा था। मैंने पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे कॉलेज छोड़ना है। हुँ, अब 2 मिनट के लिए आप थोड़ा-सा पीछे जाइए। मैं गाँव के एक ऐसे परिवार से आ रहा हूँ, जिसमें पहला लड़का हूँ मैं जो सीरियसली एजुकेशन परस्यू करने निकला है। हुँ, मुझे गाँव के कितने सारे लोग छोड़ने आए थे, हुँ। रेलवे स्टेशन पर, जी, जी, जी। ठीक है? आई कि कैन ये हमारा घर का लड़का इंजीनियरिंग करने, उनका माइंडसेट समझिए ना, बिल्कुल, उनकी कोई बिल्कुल। गलती थोड़ी है। हाँ। हमारा घर का लड़का इंजीनियरिंग करने जा रहा, हमारे गाँव का लड़का इंजीनियरिंग करने जा रहा, उनका माइंडसेट वो है, हुँ, ठीक? अब क्या हो गया कि इंजीनियरिंग छोड़ के आ जाओगे तुम? हुँ, बट माय फादर, उन्होंने कहा तुमने सोच लिया है? जी। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा ठीक, कोई बात नहीं, आ जाओ। माय ग्रैंडफादर, उन्होंने कहा हाँ, कोई नहीं, आ जाओ।
बट यहाँ पर क्या था कि अरे इंजीनियरिंग करने गए थे और छोड़ के आ गए, तो यहाँ एक स्टिग्मा शुरू हुआ. हम्म. So when I came back, I faced lot of backlash for that. I faced lot of things कि ये तो लड़की के चक्कर में होता है ना, मतलब गांव में लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, ये लड़की के चक्कर में छोड़ के आ गए, इनसे हुआ नहीं. और if you go and find my CGPA, तो वो मतलब 8-9 की रेंज में ही रहा है हमेशा. जी. ठीक है, मतलब हमारे जैसे आदमी का जो मतलब बिल्कुल मतलब. एक चीज और जो मैं इस जगह पे बताना चाहूंगा, आप अभी आगे बात करेंगे एनजीओ और स्वावलंबन और इन सब के बारे में. बात करते करते आपसे याद आया, आपको पता है इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी? और मतलब क्या क्या बेहतरीन चीज याद आई है, मैंने आज तक रिलेट ही नहीं करी थी कभी, जी. आपसे बात करते करते याद आई. आपको पता है सब शुरू कहाँ से हुआ? हम्म. हमारे कॉलेज में मैनेजमेंट ब्लॉक था, अच्छा. है ना. तो जैसे वो मैनेजमेंट वाले में होता ना कि ऐसे ऑडिटोरियम टाइप का, खुली सीढ़ियाँ हम्म. और उधर पोडियम और मतलब बड़ा सा वैसा माहौल था. तो हमने क्या किया, हमारे बिहारी और यूपी दो के दोस्त थे, हम लोग को लगा यार इंग्लिश सही नहीं है अपनी. हम्म. अब आप समझना, दिस इज द थॉट प्रोसेस ऑफ अ 17-year-old गाय, हम्म. राइट. तो मैंने सोचा इंग्लिश सही नहीं है, क्या करें. तो हम 4 दोस्त थे, ठीक है, मैं, शुभांग, अतुल, दीपांक. हम चारों ने कहा एक काम करते हैं, मैनेजमेंट ब्लॉक चलते हैं, हम्म. वहां पे ऐसा करेंगे, एक आदमी ऊपर चढ़ेगा स्टेज पे रात में, जब गार्ड वार्ड सब बाहर सो रहे हैं, चोरी से पीछे से, तो पीछे से घुसेंगे और वहां पे तुम 3 लोग नीचे बैठेंगे, एक बंदा स्टेज पे जाएगा और जो मन आएगा इंग्लिश में बोलेगा, जी. फ्री स्पीच बोलेगा. हम्म. ठीक है, शुरू किया, मजा आने लगा, हम्म. इंग्लिश इंप्रूव होने लगी. जी. जो बिहारी दोस्त थे उनकी इंग्लिश इंप्रूव होने लगी, वहां भीड़ बढ़ने लगी. हम्म. 35-35, 40-40 लोग आने लगे. ऐसा हो गया गार्ड को पता चल गया, वो बंद हो गया. जी. बट वो चिंगारी लग चुकी थी सेल्फ इंप्रूवमेंट की सब में. But I want to ask you this question. Learning to speak in English, is that self-improvement? No. See, so I always say that language is not a barrier, बिल्कुल. right? Language is a unifier, right? You should speak in your mother tongue, but you should also not be lazy to equip yourself with what is going on in the world, Absolutely. right? Absolutely. मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, क्या मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता बिल्कुल. हूँ. बिल्कुल. मैं अपने गांव के बच्चों को तमिल सिखा रहा हूँ. जी. तमिल आती है आपको? नहीं, मुझे नहीं आती. हाँ. मैं अपने गांव के बच्चों को तमिल सिखा रहा हूँ और मैं भी सीख रहा हूँ. जी. ठीक है, और उनको इंग्लिश भी सिखा रहा हूँ. मेरे गांव के बच्चे को कोई ये ना कह पाए कि तुम्हें कुछ आता नहीं है. सी, लैंग्वेज डिवाइड is nothing but an excuse of lazy people who are lazy enough to not learn other language. I love that. बिल्कुल. Right? Yes. तो सारी भाषा की लड़ाई इस पर है. तो इंग्लिश सिखाना क्यों? मेरे बिहारी भाई को ये कॉन्फिडेंस आ गया ना कि अरे भाई हम भी बोल सकते हैं अंग्रेजी. वो कहाँ कम है वो? उससे आप गणित में जीत सकते हो, उससे ज्ञान में जीत सकते हो, काहे में जीत सकते हो. खाली एक चीज को अंग्रेजी नहीं आती तो पिछड़ जाएगा वो. तो उसके दिमाग में कॉन्फिडेंस भरने के लिए वो अंग्रेजी सीखना था. कोई वो अंग्रेजों का गुलाम होने के लिए नहीं सीखना था. I wanted to hear this Yes. from you, अनुराग जी. वो ये बहुत कोई- जरूरी है. हाँ, उसके दिमाग का कॉन्फिडेंस लाने के लिए अंग्रेजी सीखनी थी कि ये बैरियर नहीं है मेरा. फिर मैंने बीटेक छोड़ा. बीटेक जब आपने फाइनली डिसाइड किया मैं छोड़ के जा रहा हूँ, उस वक्त मन में कुछ चल रहा था कि मैं आगे क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा? जब मैंने बीटेक छोड़ा, ये तो पता था कि क्या करना है, यूपीएससी. जी. उससे पहले क्या करना है ये जरूरी था. ग्रेजुएशन तो करनी पड़ेगी. जी. तो मुझे था कि मैं बीए करूंगा, जिससे अच्छा. मेरा बहुत विरोध हुआ, क्योंकि आर्ट्स को ये माना जाता था कि तो मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब हाँ. ऐसे वाले वो तो लोग करते हैं आज भी, arts वाले. हाँ. आज भी है वो. ठीक है, तो उस पर मुझे बहुत कुछ बोला गया, वो एक अलग विषय में. बट जब मैं बीटेक छोड़ने का निर्णय मैंने लिया, तो वहां पहली बार मुझे एहसास हुआ, पहली बार तो नहीं बट वहां मुझे एहसास हुआ कि मैं यहाँ 1 साल के लिए आया था, ऐसी जगह जो मेरी ट्रेडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ सपोर्ट नहीं था. मतलब मैं दूर था, मैं बेंगलोर टुमकुर में था. जब मैं जा रहा था तो सैकड़ों लोग रो रहे थे. ओके. 105 लोग मुझे कॉलेज में, हमारे कॉलेज में घुसेंगे तो 3 किलोमीटर की एक रोड थी. 105 लोग मुझे रोड पे छोड़ने आए थे, पूरा सामान साथ साथ लेकर के. 50-60 लोग प्लेटफॉर्म टिकट लेके प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए थे. प्लेटफॉर्म की स्थिति ये थी, हर बंदा कोने में खड़ा होकर रो रहा था.
मैं वहाँ मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैं रोते-रोते वहाँ से निकला हूँ। उससे 1 रात पहले पूरा कॉलेज इकट्ठा हो गया था। मतलब मैं कैंटीन में बैठा हुआ हूँ, वहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई। कहीं पर भी हर बंदा ये कह रहा था मत जाओ। हुँ, असल में मैं जब पलट के देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार मैं देख मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं सिर्फ़ आपके साथ बैठा हूँ। पूरे मन से, पूरे जी, मनोवेग से मैं आपके साथ बैठा हूँ। बिल्कुल, ठीक कंप्लीट है? इन्वॉल्वमेंट, हाँ। तो मुझे बस यही लगता है कि मैं कहीं भी रहूँ, वहाँ भी मैं रहा, लोग मेरे अपने हो गए, क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि यार ये है, ये हुँ, मेरे लिए कर रहा है, ये मुझे सोचता है, मेरे इम्प्रूवमेंट के बारे में सोच रहा है। हुँ, तो वो फीलिंग बनी। वहाँ बहुत लोगों ने कहा कि तुम भाग रहे हो। हुँ, बहुत लोग थे। अब उन्होंने वो गुस्से में कहा, इमोशन में कहा, हाँ, बहुत लोगों ने कहा। बिल्कुल। बट आई न्यू आई डोंट बिलॉन्ग हियर। हुँ, आई न्यू आई डू नॉट बिलॉन्ग हियर। हुँ, और ये बात सिर्फ मैंने नहीं बोली। मेरी एक प्रॉक्टर थी। हुँ, मैं उनका नंबर तो नहीं है बट उम्मीद करूंगा कि वो ये सुने, प्रभावती मैम। जी, एंड आई रियली रियली रिस्पेक्ट दैट लेडी। हुँ, और उन्होंने मुझसे कहा, अनुराग तुम बड़ी चीजों के लिए बने हो, हुँ, तुम यहाँ से निकल जाओ। हुँ, आप सोच, मैं बोल रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आप हुँ, सोच रहे हैं एक 17 साल का लड़का जो एकदम इर्रेंट है, जो मतलब ऐसे लोगों के साथ घूमता है और मतलब कभी कभी क्लास भी नहीं जाता है, और जिसकी कंप्लेन करने वाले सैकड़ों लोग हैं, हुँ, उसको वो लेडी बोल रही है कुछ तो देखा होगा बिल्कुल। कि तुम यहाँ के लिए नहीं बने हो, तुम यहाँ से निकल जाओ। हुँ, हुँ, यू आर मेड फॉर बिगर थिंग्स। तो वो भी साथ चल रहा था। हुँ, तो मतलब डाउट निकल गया। हुँ, और जब मैं देखिए वो जो मैंने पहले गलती की ना आईआईटी वाली, तो हुँ, मैं अब जीवन में जब कभी कुछ होता है तो मैं हमेशा अपने पीछे की लाइफ को सोचता हूँ। हुँ, मतलब आई वाज स्ट्रांग माइंडेड एट द एज ऑफ 17 टू टेक अ कॉल दैट आई लीव बीटेक। हुँ, And do you know, when I was coming back from the train, there was a person who was from Indian Army, हुँ, साईं अंकल, उनका साईं करके नाम था, आगे का नाम मैं भूल रहा हूँ। तो आंध्र प्रदेश से थे। तो मैं रो रहा था, रो रहा था, रो रहा था। मतलब जब मैं रात में घुसा, हुँ, तो जब मैं रात में घुसा तो बहुत रो रहा था। मैं रोते-रोते सो गया। सुबह उठा तो मैंने ऐसे, अब हैं तो उत्तर प्रदेश के, हुँ, तो सुबह उठे तो हमने थोड़ा इधर-उधर देखा, वो ब्रश-वश करके आए। फिर फिर देखा वो 2 लोग बैठे हुए हैं, हाथ में कार्ड्स लिए, हुँ, ताश। हुँ, मैंने कहा, हाँ गुरु, खेलोगे? आप समझो, रात का इमोशन सुबह का। तो वो चालू हो गया, हुँ, खेलने लगे। वो अंकल जी मेरे पास आए। जी, उन्होंने कहा, क्या कहानी है? हुँ, मैंने बताया। हुँ, उन्होंने मुझसे एक बात बोली। उन्होंने कहा, काश मैं तुम्हारे जितना करेजियस होता व्हेन आई वाज ऑफ योर एज। हुँ, उन्होंने कहा, तुम्हें पता है तुम क्या करके आ रहे हो? मैं वो बात कभी नहीं भूलूंगा। हुँ, उन्होंने कहा, तुम्हें पता है तुम क्या करके आ रहे हो? मैंने क्या? उन्होंने कहा, बेटा पूरी जिंदगी भर लोग ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि अगर उनसे कुछ गलती हुई है तो उसे रेक्टिफाई कर पाए। हुँ, हुँ, पूरे जिंदगी भर लोग, किसी को कॉर्पोरेट जॉब नहीं पसंद है वो छोड़ नहीं पाता। हुँ, पूरे जिंदगी भर लोगों ने, अगर मान लीजिए किसी ऐसे जॉब में, किसी माहौल में फंसे हैं, वो कोर्स करेक्शन की हिम्मत नहीं दिखा पाते। तुमने 17 साल की एज में मुझे उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये निर्णय मैंने खुद लिया है। हुँ, हुँ, तो देयर आई स्टार्टेड हैविंग दिस फीलिंग, हुँ, यू नो, कि दैट आई एम, मतलब शायद ऊपर वाले ने कुछ तो एब्सोल्युटली। दिया है, कुछ हुँ, बनाया है ना, हुँ, मतलब। तो वो था। तो डाउट्स, मतलब लोग, सुना हुँ, बहुत कुछ सुना, छोड़ के जा रहे हो ये वो। वापस आने के बाद उससे ज्यादा सुना। हुँ, जॉइंट फैमिली थी, जॉइंट फैमिली में हर प्रकार के लोग होते हैं, आसपास रहने वाले। सामाजिक स्तर ऐसा था, ठीक है, कि बहुत परिवार के आसपास के लोग, गांव के लोग, अरे ये तो आ गए, ये तो गए थे, हुँ, फलाना हुँ, ढिकाना, वो सब होने लगा। हुँ, बहुत सुना। उस समय पर ज्यादा सुना। उस हुँ, समय पर थोड़ा सा ये भी मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि डिप्रेशन जैसी भावना भी एक हुँ, आई कि क्या हो रहा है, मतलब। हुँ, बट भगवान की दया थी, मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे तो उन्होंने संभाला। अब यहाँ पर एक और गुरु की एंट्री मेरे जीवन में हुई, यतीन्द्र जी की। हुँ, उन्होंने बहुत संभाला। मैं उनके पास गया गाइडेंस के लिए हुँ, यूपीएससी की, कि सर मुझे यूपीएससी करनी है। उस बंदे ने मुझसे एक बात कही। हुँ, उन्होंने कहा, देखो तुम जो कर के आए हो ना, तो मुझे लगता है कि तुम इन्हीं चीजों के लिए बने हो। उन्होंने हुँ, भी पूरी कहानी सुनी और फिर उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा अगला फोकस है अपने आप को इम्प्रूव करने पे। हुँ, कानपुर में एक पुस्तकालय है। जी, कानपुर में एक बहुत फेमस जगह है, फूलबाग। हुँ,
फूल बाग में एक पार्षद पुस्तकालय है, बहुत पुराना पुस्तकालय है, मैंने वहाँ की मेंबरशिप ली। जी। बहुत बड़ा और बहुत पुराना पुस्तकालय है। अगले 2-3 साल आप मान के चलिए, 3 साल मैंने 521 बुक्स पढ़ी हैं, हुँ। 521 किताबें, किस तरह की किताबें थी? सब कुछ, हुँ। सब कुछ। मतलब हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था गोबल्स, हुँ। उससे लेकर के गीता, मानस, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वर्ल्ड हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका रघुराम राजन से लेके अरविंद पनगड़िया से लेके, मतलब कुछ नहीं छोड़ा हमने। हुँ। ठीक है, तो डेविड मेलोन, जो लोग आईआर वाले लोग जी। हैं, डेविड एम मेलोन, मेलोन कैन एलिफेंट डांस, ठीक है, शशि थरूर, पैक्स इंडिका, ठीक है ना, हुँ। तो सब कुछ। हुँ। वो टाइम था जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आज जो भी मैं हूँ वो उसकी वजह से हूँ, क्योंकि दैट वाज क्वेस्ट फॉर नॉलेज। और जो भारत जहाँ से हमने शुरू किया था ना, हुँ। मुझे पहली बार मजा आ रहा था। हुँ। पहली बार मुझे लग रहा था कि मैं, यू स्टार्ट फीलिंग दैट एनर्जी। यस। मुझे याद है जिस दिन मैंने सुभाष चंद्र बोस पर एक किताब पढ़ी, सुभाष चंद्र बोस कुछ अधखुले पन्ने, हुँ। उसमें 2 लाइनें लिखी थी। हुँ। सुभाष बाबू की एक बहुत फेमस वो है, निज जीवन से राष्ट्र बड़ा होता है, निज जीवन से राष्ट्र बड़ा होता है, जब हम मिटते हैं तब राष्ट्र खड़ा होता है। बिल्कुल। जब वो मैंने पढ़ा हुँ। और उस 2 लाइन को मैंने अपने रूम में चिपकाया, हुँ। तब से आज तक कभी भी कोई समस्या आती है तो कुछ लाइनें जो मैं गुनगुनाता हूं उसमें एक ये है। जब कभी कमजोर पड़ता हूं तो एक दिनकर जी की लाइन है जिसमें वो कहते हैं, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें भक्ति विजय शक्ति विजय की। तो वो और ये कुछ ऐसी लाइनें हैं जब हुँ। भी मैं मुझे लगता है कि शक्ति चाहिए, हुँ। देखिए सब कुछ तो अंदर है, बिल्कुल। वी सारा आर, पूरा ब्रह्मांड हमारे पूरा अंदर ही ब्रह्मांड बसा है। अंदर है, ठीक बिल्कुल। है। तो हमारी जो चेतना है वो सब अंदर है, हुँ। ठीक है, और सभी के अंदर वो ब्रह्मांड है, हम कितना उसे जगा पाते हैं। हुँ। हम कहते हैं ना शिव, तो शिव में ई हटा दें तो शव बचता है। बिल्कुल। वो ई क्या है? ई ही हमारा ईकार तत्व, हमारी बिल्कुल। एनर्जी, हमारी बिल्कुल। प्राणवायु है। हुँ। वो ई सब के अंदर है। हुँ। हम कितना जगा पाते हैं, जागृत कर पाते हैं, वो हमारा वो है। 521 किताबों की आपने बात की। उसमें अर्थशास्त्र में आपकी रुचि बढ़ी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर बढ़ी और द नेक्स्ट फेज़ ऑफ योर लाइफ हैज़ बीन डिफाइंड, क्योंकि आप हमेशा रूरल इकोनॉमी की बात करते हैं, गाँव की बात करते हैं, तो अर्थशास्त्र जो है, आई डोंट थिंक इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। मैं जब रूरल इकोनॉमी की बात करता हूं तो हमें 2-3 चीजें समझनी होंगी। हुँ। भारतीय संविधान का आर्टिकल 38, हुँ। Article 38 of Indian Constitution says, and I quote, state shall strive to promote a social order Hmm. in which justice, social, economic, and political Hmm. shall inform all institutions of national life, unquote. Hmm. Right? वो ये कह रहा है कि जो हमारा स्टेट है, यानी कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों, हुँ। उनको एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाना है जिसमें जस्टिस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल तीनों तरह का हो, ठीक। बिल्कुल। यानी कि जब हम रूरल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी सोशल जस्टिस के बिना नहीं आती है। हुँ। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी सोशल जस्टिस के बिना नहीं आती है। बिल्कुल। और अगर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी सोशल जस्टिस के बिना आ भी गई हुँ। तो आप फिर भी आपकी लाइफ डिग्निफाइड नहीं होती है, आपके पास पैसा है, समाज में स्थान नहीं है। अब सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बिना पॉलिटिकल जस्टिस के या बिना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के या बिना पॉलिटिकल कैपिटल के संभव नहीं है। हुँ। मतलब आप किसी देश में अगर सिटीजन नहीं है, वोटिंग राइट नहीं है, तो कोई भी बंदा आप पर काम क्यों करेगा? बिल्कुल। यानी कि पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस तीनों इंटरट्विन्ड हैं, राइट। अब चाणक्य की सबसे बेहतरीन बात क्या है? चाणक्य ये कह रहे हैं कि अर्थ, नाउ लेट मी टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाणक्य कह रहे हैं कि अर्थ जो है वो सामाजिक जीवन का, हुँ। राजनैतिक जीवन का, राज्य का और इंडिविजुअल का हुँ। मूल है। जी।
ठीक है, वो कह रहे हैं कि अर्थ मूल है। अब उनका अर्थ से मतलब क्या है? अर्थ से उनका मतलब ये है राइचियसली अर्न्ड मनी। अर्थ का मतलब क्या है कि जो नैतिक तरीके से आपने पैसा कमाया हो वो उनके लिए अर्थ है, यानी कि धर्म से, धार्मिक तरीके से कमाया हुआ अर्थ। धार्मिक तरीका मतलब ड्यूटी, जो आपकी ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, सही तरीका है, जो राइचियस है, उस तरीके से जो कमाया गया अर्थ है वो आपके जीवन का मूल है। ठीक? अब चाणक्य ने कहा कि देखिए, अगर आपकी इकोनॉमिक्स कमजोर होगी तो क्या होगा कि आपका ओवरऑल स्टेट सफर करेगा। ठीक भाई, मैं एक चीज पर बहुत ध्यान देता हूं और मेरा पूरा जो विजन है वो उसी पर जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ हमेशा एक बात बोली गई है, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को पढ़ें, ठीक, प्रियम्बल में लिखा है वी द पीपल हैविंग सोlemnly resolve टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू। मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। वी द पीपल इज टेकिंग अ रिजॉल्व। हम भारत के लोग एक कलेक्टिव रिजॉल्व ले रहे हैं, बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। कि हम भारत को ऐसा बनाएंगे। फिर उसके बाद भारत का टाइप बताया है सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, ये वो। फिर लिखा है एंड टू सिक्योर इट्स एवरी सिटीजन जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड इक्वालिटी एंड ऑल दैट। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? हम एक कलेक्टिव रिजॉल्व ले रहे हैं, रिजॉल्व कलेक्टिव है, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर एक इंडिविजुअल को हम ये सब देंगे, राइट, लास्ट माइल डिलीवरी देंगे, राइट। मतलब कि हम स्टेट को, कलेक्टिव कंट्री को, 150 करोड़ लोगों को की रिजॉल्व है कि हम हर इंडिविजुअल की केयर करेंगे। ये जो लोग आज ये कहने लगते हैं कि इंडिविजुअलिज्म होना चाहिए या कलेक्टिविज्म होना चाहिए, आप और में क्यों जाते हैं? बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है एंड है, रिजॉल्व कलेक्टिव है, हमारी डिलीवरी इंडिविजुअलिस्टिक है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि चाणक्य का विजन क्या था, अर्थशास्त्र उनके लिए क्या था, अर्थशास्त्र मेरे लिए क्या है कि इंडिविजुअल को इतना प्रॉस्पेरस बनाओ कि स्टेट प्रॉस्पेरस हो। स्टेट प्रॉस्पेरस होगा, इट विल बी एबल टू गिव बैक टू इंडिविजुअल, ठीक, और इंडिविजुअल प्रॉस्पेरस होगा तो स्टेट कैन टेक एंड इंडिविजुअल कैन गिव बैक टू द स्टेट। इट इज अ टू वे economics, absolutely, right? क्योंकि smallest constituent of a society is an individual, Yes. which forms a family, and that's how we grow. Exactly. और यही कॉन्सेप्ट है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का। पंडित दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन यही कहता बिल्कुल, है बिल्कुल, कि इंडिविजुअल से शुरू होता है, और इंडिविजुअल इतना इंपॉर्टेंट है कि आप उसको छोड़ दोगे तो सब कॉन्स्टिट्यूट। भाई, मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं इस यूनिवर्स का 1/120th ट्रिलियन पार्ट हूं, बट मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि मैं हूं। हमने अपने यहां पर एक बहुत छोटी सी बात कही, अहम ब्रह्मास्मि। उसका मतलब क्या है? मैं ब्रह्म हूं ऐसा नहीं है, मैं भी ब्रह्म हूं। बिल्कुल, ब्रह्म 3 ट्रिलियन लोग हैं, ठीक है, मतलब कहीं और भी लाइफ होगी, मैं ऐसा मान रहा हूं पूरे यूनिवर्स में, ठीक है। मैं भी ब्रह्म हूं, मेरे अंदर भी ब्रह्म है, तो मैं उस पूरी व्यवस्था का पार्ट हूं। तो जब आप मेरे से रूरल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो आपको ये समझना होगा कि मैंने अपने एनजीओ का नाम रिथ क्यों रखा। तो हमारा बेसिक फोकस ये है कि हम अर्थशास्त्र को जीवन का हिस्सा मान करके आगे बढ़ रहे हैं। हम देखिए, हम महिलाओं को एजेंसी दे रहे हैं। एजेंसी का मतलब डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल। हम जो हमारे ग्रामीण युवा हैं उनको ये पावर दे रहे हैं कि आपको बाहर ना जाना पड़े, आप यहीं पर समृद्ध रहें। उससे क्या होगा, हमारे गांव का कल्चर, गांव की सभ्यता वहीं बनी रहेगी। गांव वीरान नहीं होंगे, गांव खत्म नहीं होंगे। आज जिस युग में हम जी रहे हैं वहां हमारे गांव खत्म होते जा रहे हैं। आप कितनी भी बात कर लीजिए, आप सोशल चेंज की बात करिए, आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करिए, लेकिन अगर अर्थ नहीं है तो वहां क्यों रुकेगा? इफ ही इज नॉट एबल टू प्रोवाइड फॉर children, their education, their health, why he will stay in villages? Right? So my basic thing is that we have to ensure that they have all of these things there. And in order to do that, we must ensure that rural economy is strong. Economy is not something that we can plan and do in isolation. Economy has, adhere to the realities of the society. Economy must ensure that social cohesion is maintained. Economy must ensure that socially people are uplifted. Economy must ensure social justice also. Economy must ensure political goodwill also, political representation also. To me, diversity is not just about
different people, diversity is actually about diversity of ideas. Yes. तो diversity of ideas बहुत ज़रूरी है. ये जो आज के सबसे ज़्यादा डिस्कशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से लेके यूएन से लेके G20 से लेके सब जगह जो है वो लोग क्लाइमेट की बात करते हैं. और मेरा एक बहुत सिंपल इस पर कहना है कि देयर इज नो क्लाइमेट जस्टिस विदाउट सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, एंड द पॉलिटिकल विल पावर इज इक्वली इंपॉर्टेंट. हम ये जो विकसित देश हैं ये सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं क्लाइमेट के बारे में. आई थिंक व्हाट भारत हैज डन इन द लास्ट फ्यू ईयर्स टुवर्ड्स क्लाइमेट, और भी बहुत कुछ करना बाकी है. आई थिंक वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू इम्बाइब सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू अ सर्टेन एक्सटेंट. जब आप मुझसे ऋत की बात करेंगे तब मैं इस पे आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि हाउ वी हैव ऑपरेशनलाइज दैट. Absolutely. So now we move into Rit Foundation, Shan Foundation, और नाना जी नाना जी. 77 के बाद उन्होंने 30 साल अपने जीवन के सामाजिक सेवा में दिए, बिल्कुल. और उन्होंने चित्रकूट और गोंडा यहाँ के हजारों गांवों को उन्होंने खड़ा किया. स्वावलंबन, जो आप जिसे आज आप आगे चर्चा करने जाएंगे, वो स्वावलंबन, वो शिक्षा, वो ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप जिसके आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में बात करते हैं, यूएन के फोरम से बात होती है, नाना जी ने वो शुरू किया. महिलाओं को एजेंसी दी, महिलाओं से काम कराना शुरू किया, महिलाओं के बराबरी के हक के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी. गांवों को ठीक करने का जो सबसे बड़ा एजेंट चेंज बताया, जो सबसे बड़ा ड्राइवर बताया, वो महिलाओं को बताया. वो नाना जी हैं. Anurag ji, so now we come to the foundation, and I think foundation कहना, it's not just a foundation. I think for me this is a vision. और Reet Rural Foundation जो है, it has a vision of 2030. How that started and what next. क्योंकि मैं उसको बिल्कुल जो शान फाउंडेशन जो आपने 2020 में क्रिएट की, especially during the COVID phase, and Reet Foundation, I think in some form or shape all of them are tied. बहुत रेलेवेंट और बहुत बेहतरीन सवाल. आप एक चीज सोचो, मेरे गांव में अस्पताल में डॉक्टर नहीं आ रहा है, या अस्पताल की समस्या है. अब आपको मेरे अस्पताल की समस्या सुधारने के लिए ये पता होना चाहिए कि ग्राम पंचायत की पावर्स क्या हैं, 11th शेड्यूल में क्या है, वहां पर ऑफिशियल स्ट्रक्चर क्या है, वहां पर प्रैक्टिकली जो आपका जो सीएमओ लेवल है या डिप्टी सीएमओ लेवल है उसमें क्या हो रहा है, सरपंच का क्या. मतलब व्हाट आई फाउंड मिसिंग वाज द प्रैक्टिकल नॉलेज. Okay. And whatever I have read, my experiences of my childhood, of my family, of my village, so they motivated me to start something जहां पर हम ऐसे लीडर्स को बना पाए. तो 2008 अच्छा, कोचिंग शुरू करना मतलब वो नियति थी, प्लान नहीं था. ठीक है, 2016 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, मैं फेल हुआ, बट लोग पढ़ने आना शुरू हो गए, मैंने पढ़ाना शुरू किया. पढ़ाते 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 मुझे ये लगा कि यार ये कुछ अच्छा है. आप समझ रहे हो ना, आप किसी के दिमाग को शेप कर रहे हो, आप उसमें वैल्यूज डाल रहे हो, आप उसको सोचना सिखा रहे हो. मैं हमेशा कहता हूं, भाई साहब यूपीएससी में गुरु खत्म हो गए हैं, यूट्यूबर बन गए हैं. आप कह रहे हो 100 घंटे में मैं पॉलिटी पढ़ा दूंगा. ठीक है, 100 घंटे में भारत का संविधान पढ़ा देंगे, भारत की राजनीतिक व्यवस्था पढ़ा देंगे, तुम्हें सोचना नहीं सिखा पाएंगे. गुरु का काम सोचना सिखाना है. आप हमेशा उस फाइन लाइन को डिफरेंशिएट करिएगा. एक गुरु जो है वो आज का कमर्शियल टीचर नहीं है. गुरु का काम आपको सोचना सिखाना है. क्यों ऐसा होता है कि यूपीएससी में जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास कोई कनेक्शंस हैं, कनेक्शंस एज इन जो ऐसी फैमिली से आ रहे हैं जहां उनको कोई इस लेवल पे गाइड करने वाला है. ब्यूरोक्रेट का बच्चा क्यों ब्यूरोक्रेट जल्दी बन जाता है? क्योंकि उसके पिता उसको ये समझाने के लिए है कि बेटा सिलेबस तो तुम पढ़ ही लोगे, सोचना ऐसे है, थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए. वो नहीं है गांव के बच्चे के पास, हिंदी मीडियम के बच्चे के पास वो नहीं है. बिल्कुल. क्यूरियोसिटी
is so very important. यस, क्यूरियोसिटी एंड हाउ यू विल थिंक। मैं आपको अभी मैं बात कर रहा था, मैंने रूरल डेवलपमेंट से आर्टिकल 38 को लिंक करा, प्रियम्बल को लिंक करा। हमारे बच्चों के अंदर ये थॉट प्रोसेस डेवलप होना चाहिए। तो मेरा पढ़ाने का डिसीजन इसलिए लिया गया कि मुझे लगा कि ये नहीं हो रहा है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ऐसे ब्यूरोक्रेट बनाने हैं, राष्ट्र निर्माण करना है तो अकेले तो नहीं कर पाऊंगा, मुझे ऐसे लोग बनाने हैं जो इस यात्रा में मजबूती से लगें और इस विजन के साथ लगें जिनका थॉट प्रोसेस हो। वहां से पढ़ाना शुरू किया। 2016 में पढ़ाना शुरू किया, कुछ ठीक ठाक वो हुआ, तो फिर लोगों ने कह करके कोचिंग खुलवा दी, वो शुरू हो गया। बट कोचिंग का नाम हमने शान आईएएस रखा। कोविड आया, मैंने आपको बताया कि 2018 में मैंने कोचिंग शुरू की और उसी समय 2018 में मैंने अपने गांव में पहला पुस्तकालय खोला अपनी पहली कमाई से। आई वॉज 22 और 23 देन, राइट, 23 देन। सो उस समय पे पहली कमाई से अपने गांव में पहला पुस्तकालय खोला। ठीक है, विजन क्या था? वही बचपन की टीस। ठीक, कोविड आया। अब जब कोविड आया तो हमने अपना एनजीओ रजिस्टर नहीं कराया था, तो शान नाम से ही हमारा सारा वो चलने लगा। मतलब एज इन हम जो भी काम कर रहे थे, वी फेड अराउंड 6 लाख पीपल्स इन गुड़गांव। ठीक है, तो वो सब कोविड में हुआ और वो शान नाम से चलने लगा। तो वहां से लोग शान फाउंडेशन करने लगे। बट देन हमें लगा कि हमें एनजीओ रजिस्टर कराना पड़ेगा। Why Shan? एक ये था कि भाई हम एक डिग्निफाइड लाइफ देना चाह रहे हैं लोगों को। ठीक है, मतलब गांव का बच्चा जिसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जो ये इमेजिन ही नहीं कर पाता कि मैं भी कलेक्टर बन सकता हूं, मैं भी डीएम बन सकता हूं, जिसकी सोच ही वहां तक नहीं है, उसको डिग्निफाइड ड्रीम्स देने। यार, आप कई बार कि कहा जाता है कि आप सपने जितने ऊंचे देखेंगे उतना ही ऊपर आप जाएंगे। भले ही आप ये देख रहे हैं तो आप वहां ना पहुंच पाए, यहां तो पहुंचेंगे, बट आप वहां तक देख ही नहीं रहे तो आप कहां पहुंचोगे ना। और सपने देखने की स्वतंत्रता, सपने देखने की आजादी, सपने देखने की हिम्मत, वो शान का काम था। इसलिए शान को शान रखा गया। राइट, तो हमने वो शुरू किया। कोविड आया। कोविड में फर्स्ट वेव में जो लॉकडाउन हुआ, उसकी कहानी भी आप आई गेस पूछेंगे ही, तो मैं उसमें भी नहीं जा रहा हूँ। देख, एक स्पेशली एक कहानी जो जिसने आपको इंस्पायर किया, जो आपने कहा था आप घर पे बैठे हुए थे। बिल्कुल, मुझे वो कहानी आई डेफिनेटली वांट टू शेयर टू द वर्ल्ड। मेरे लिए वो बहुत पर्सनल है क्योंकि मैंने देखा है करीब से हाउ कोविड इफेक्टेड। सो प्लीज। 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा था। 4 अप्रैल 2020 सुबह के करीब करीब 10 बजे, मैं 9 या 10 बजे मैं नाश्ता कर रहा था जी। मेरे यहाँ 2 लोग, उस समय पे 2 लड़के काम करते थे, एक अभी भी है, कभी गांव में है, गोविंद और मोनू। तो ये दोनों हमारे घर के जस्ट सामने फ्लाईओवर है। तो फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग बैठे हुए थे, तो ये बालकनी में गए और इन्होंने कुछ देखा और ये दौड़ते हुए मेरे पास आए। इन्होंने कहा, भैया एक बार बाहर आओ। मैंने कहा, क्या हो गया? उन्होंने कहा, अरे आप आओ। मैंने अच्छा। जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि एक गाड़ी है, वो कुछ लोगों को खाना बांट रही थी, तो उनका खाना खत्म हो गया होगा, तो बाकी लोग उस गाड़ी के पीछे भाग रहे थे। अच्छा। अब आप सुनिएगा गांव के संस्कार और मानवता। तो मोनू ने मुझसे कहा, मोनू और गोविंद ने मुझसे कहा कि भैया चाहे हमारी सैलरी से पैसे काट लो, लेकिन इन लोगों को खाना खिलाओ। सैलरी कितनी उनकी? 8,000 10,000। मैं अवाक रह गया। नॉट दैट कि मैं वो देख के वो करता नहीं, बट मैं ये देख रहा था कि ये जब अभाव होते हैं ना, अभावों को आप भावों से पूरा करते हो। बिल्कुल। वो जिसकी सैलरी 8,000 10,000 है, वो ये कह रहा है कि मेरी सैलरी से पैसे काट लो भैया, लेकिन उनको खाना खिलाओ। पोहे की प्लेट रखी थी, वो खिसकी किनारे। हमने कहा चलो, हम तीनों 4 लोग थे घर पे उस समय पे, 4-5 लोग, 4 लोग थे उस समय पे। चारों लोगों ने 100 लोगों के खाने की ड्राई राशन की व्यवस्था करी। जी। गुड़गांव पालम विहार में, निहाली कॉलोनी, न्यू पालम विहार में जगह है, वहां हम लोगों ने लोगों को ढूंढा, एक पुलिस वाले को साथ लिया। जी। वहां पर जाकर के हमने उन लोगों को राशन बांटा। तब जाकर के वापस आके घर पे खाना खाया और खाना खा के अच्छा लगा उस दिन। ये थी शुरुआत। जब हम निकले, क्योंकि उस समय तक तो पता ही नहीं था ना कि हो क्या रहा है। Was this moment also the moment when Shan Foundation was born? आप ये कह सकते हैं कि ये वो समय था
जहाँ से शान फाउंडेशन से रित फाउंडेशन के जन्म होने की कहानी है। एक्चुअली शान फाउंडेशन वाज़ नो सच थिंग। शान आईएएस वाज़ अ थिंग, हम्म, लेकिन चूँकि हम लोग काम ऐसा करने लगे थे तो क्या लोगों ने उसी ऑब्वियसली, को शान फाउंडेशन हाँ, बना दिया वो था, ऑर्गेनिकली हो गया वो। ऑर्गेनिकली हो गया था। हाँ। तो हमने उस समय, इस समय तक हमने एनजीओ रजिस्टर नहीं करा था, हम्म, ठीक है? जब ये हुआ तो हमें सच पता चला, हम्म, उस समय पे क्या हो रहा है। देखिए, मॉन्यूमेंटल चीज़ थी। हम्म, सरकार ने बहुत काम किया, हम्म। सामाजिक संगठनों ने बहुत काम किया, लेकिन जब विपत्ति समाज पर आती है, जब विपत्ति पूरे देश पर आती है, तो हमारा तुम्हारा नहीं होता है। नहीं, हम इट्स अ कलेक्टिव यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, ये नहीं होता है एब्सोल्युटली। कि वो मोदी जी कर लेंगे, हाँ। ये वो योगी जी कर लेंगे या संतोष जी कर लेंगे या अनुराग जी कर नहीं। हम क्या कर सकते हैं? हम्म, हम अपने उस समय पर अपने मोदी जी ने बहुत सिंपल सी बात बोली थी। उन्होंने कहा था आप कम से कम जिनको सैलरी दे रहे हैं, उनको सैलरी देते रहिए। हाँ, उनको खाना खिलाते रहिए। क्योंकि मुझे लगा कि वो जो उन्होंने एड्रेस किया था जस्ट लॉकडाउन शुरू होने से पहले, वो आई थिंक दैट वाज अ वेरी प्रोफाउंड एंड डिफाइनिंग मोमेंट फॉर यस, ऑल ऑफ अस। यस। तो हमने वो 100 लोगों के खाने के बाद हम्म, उसकी फ़ोटोज़ हमने अपने कुछ ग्रुप्स में डाली। जी, मेरे स्कूल की एलुमनाई थी, उसमें डाली और जगह पे डाली, तो लोगों को लगा कि कुछ अच्छा हो रहा है। जी। संतोष जी, वहाँ से शुरू हुआ कारवां। 2.5 महीने तक गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल डिफेंस, दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब के साथ मिलकर के अगले 2.5 महीने तक हम राशन प्रोक्योर करते रहे अपने हम्म, फंड से, फंड्स कलेक्ट करके। हम्म, छोटी सी वैगनार गाड़ी थी, उसमें स्टफ कर कर के सामान एक दिन में 8-8, 10-10 चक्कर हम्म, लगाना। भयंकर धूप होती थी उस समय पे, कुछ समझ में नहीं आता था। हम्म, बस ये था कि कोई अपना भूखा ना रहे। हम्म, और 2.5 महीनों में हम लोगों ने 6 लाख मील्स डिस्ट्रीब्यूट करी हैं। हम्म, और ये चारों लड़के, मतलब आप सोचिए, कई कई बार ऐसा हो जाता था कि सुबह निकले हैं, एक राउंड बांट के आए, वापस फिर सामान भरवा रहे हैं गाड़ी में, फिर निकले, खुद का खाने का ठिकाना नहीं। हम्म, साथ में पुलिस वाले जाते थे, बहुत मेहनत की उन्होंने भी, दिन दिन भर अच्छा, देखिए इतनी बड़ी वो थी, कभी रात में 11 बजे फोन आ गया, हम्म, भैया हमारे यहाँ खाना खत्म हो गया है, हमारे बच्चे रो रहे हैं। पता चला उनको लेकर के मतलब एक उस समय पर जो जो भावनाएं हमने अपने अंदर महसूस करी ना, हम्म, उससे ये समझ में आया कि यार हम कुछ हायर पर्पस तो है। हम्म, क्योंकि सब भूल गए थे, मतलब अपना दर्द, परिवार वाले फ़ोन कर रहे हैं, तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये वो कुछ नहीं समझ में आता था। हम्म, मुझे लगता था कि यार ये लोग, देखिए, हम लोगों ने ऐसे-ऐसे घर देखे हैं कोविड के दौरान, एक परिवार एक कमरे के घर में रह रहा है, हम्म, जैसे वो हाते टाइप के होते हैं हम्म, जिसमें 40-40 कमरे होते हैं, उसमें उनकी माँ भी रह रही हैं, बच्चे भी रह रहे हैं, पति-पत्नी रह रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा, मैं ऐसे होता था कि मैं रॉयल एनफील्ड मैं अपनी आगे लेके चलता था, पीछे वो ब लड़के जो है वो अपना वैगनआर से चलते थे, हम्म, तो मैं देखते हुए जाता था कि कहाँ-कहाँ नीड है। क्योंकि दर्द समझिए, एक जो देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो स्लम में रह रहा है ना, वो माँग लेता है, हम्म, लड़ लेगा हम्म, कि भैया हमारे पास नहीं है खाना, हमको दो। एक जो जिसको हम कहते हैं लोअर मिडल ग्रुप, हम्म, लोअर मीडियम इनकम ग्रुप जो होता है ना, उच्च निम्न मध्यम परिवार, जी, जिसके अंदर माँगने में झिझक है, हम्म, क्योंकि उसको लगता है मेरा आत्मसम्मान खराब हो जाएगा, बिल्कुल, मैं क्यों माँगूँ? हम्म, लेकिन उसकी परिस्थितियाँ बेचारे की ऐसी हैं कि वो उस समय, उस मौके पर या वहाँ फँसा है। मुझे ध्यान है, बाँटने के तीसरे या चौथे दिन, पहले तो हम लोग स्लम्स में बाँट रहे थे, बट हम्म, देन वी रियलाइज़ कि यार यहाँ पे काफ़ी लोग दे रहे हैं। क्योंकि भारत में ना गरीबी का जो आप चाहे मूवीज़ कह लीजिए या चाहे वो कह लीजिए, जो पिक्चराइज़ेशन हुआ है वो स्लम ओरिएंटेड है, हम्म, कि गरीब कहाँ है? स्लम में है। हम्म, है ना? तो आप अगर आप मैं आपसे आज कहूँ कि गरीबों के बीच में बर्थडे मनाना है, आप कहाँ जाओगे? स्लम में जाओगे। हम्म, हमारी परिभाषा वहाँ थोड़ी बदलने लगी, जो हमने अनुभव किया। हमने हम्म, देखा स्लम में लोगों के पास में एक्चुअली चीज़ें पहुँच रही हैं, कि हर हम्म, बंदा वहीं जा रहा है। हम्म, तो मैंने कहा नहीं है, कुछ और ढूँढना पड़ेगा। तो हम्म, हमने बाइक ले लेकर के निकलना शुरू किया। हम्म, तो हमने देखा कि निहाली कॉलोनी और न्यू पालम विहार में ऐसी व्यवस्थाएँ थीं जहाँ पे एक घर है, उसमें 40 कमरे हैं और हर कमरा रेंट पे दिया गया है। हम्म, मुझे एक 50 साल के आसपास के एक बुजुर्ग मिले। हम्म, वो उसके बाहर खड़े थे। हम्म, मेरी और उनका आई कॉन्टैक्ट हुआ। हम्म, पता नहीं क्या हुआ कि मुझे समझ में आ गया कि इनको ज़रूरत है। तब हम्म, मैं उनके पास गया, बाइक खड़ी की, मैंने कहा दादा खाना भोजन बाँट रहे हैं, तो आवश्यकता है क्या? ऐसे हम्म, कि उनके चोट ना लगे, बिल्कुल, बिल्कुल, आत्मसम्मान को चोट ना लगे। हम्म, मैंने कहा दादा थोड़ा-सा भोजन-वोजन लाएँ, तो आवश्यकता हो तो दे देते हैं।
उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा मेरा पहला वाला कमरा है, जाके देख लो कितना भोजन है मेरे पास। 100 ग्राम पन्नी में, पॉलीथीन में 100 ग्राम आटा रखा हुआ था। घर में उनकी माँ थी, उनकी पत्नी थी, बेटे बेटी थे, 5 लोग। वो देखा है। हम्म, जब उनसे बात की तो पता चला कि गांव में उनकी जमीन है, समृद्ध परिवार से आते हैं, लेकिन वहां बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, तो यहाँ आकर के इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में जो है वो उसका काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन का। हम्म, वही दर्द है ना जहां से शुरू हुआ था हमारा। correct. And that is how Shan Foundation gave birth to the रिथ Reed फाउंडेशन। Foundation. क्योंकि वो जो 2.5 महीने का समय था, हम्म, पहले हमने यहाँ किया, फिर मैं उन्नाव गया। हम्म, मुझे लगा कि वहां भी लोगों की आवश्यकता होगी, वहां हमने राशन बांटना शुरू किया। बट जब मैं उन्नाव गया, यहाँ से लौट करके, मतलब लॉकडाउन ईज हुआ, 2.5 महीने हमने यहाँ राशन बांटा। मतलब 8 अप्रैल से लेकर के, जितना मुझे याद है, 15 जून तक हम लोगों ने ये काम किया। 21 जून तक हमने ये काम किया था, 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें सबके डेटा और कहाँ क्या बांटा, वो पूरा गूगल शीट पे आज भी हमारे पास उसका रिकॉर्ड पूरा रखा हुआ है। तो उसके बाद जब मैं गांव गया तो मेरे दिमाग में एक पिक्चर बहुत क्लियर थी। वो ये कि ये यहाँ क्यों आए, true. ये एक कमरे के घर में रहने को मजबूर क्यों हुए, इनका आत्मसम्मान इतना, मतलब इतना चोटिल क्यों हो रहा है। Correct. तो जा करके ये हुआ कि हम गांव जाएंगे, और ये जो इन्वर्टेड डेवलपमेंट मॉडल है यार, हमारे गांव से समृद्ध कुछ है क्या? हम आप खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं गांव की बदौलत, बिल्कुल। और हमने उसी को गरीब बना दिया, उसी को खत्म करने पर आमादा है। वही व्यवस्थाएं नहीं है हमारे पास में। तब ये हुआ कि अब हमें वापस जाना है। अब वापस जाना है तो काम करना है, काम करना है तो क्या काम करना है। तो ये हुआ, बहुत क्लियर हो गया था उस 2.5 महीने के दौरान, ग्रामोदय। और ग्रामोदय से ही फिर होगा भारत भारतोदय। बिल्कुल। तो ये सोचा गया। अब दूसरी बात आई, नाम क्या हो। कि मैं 2 शब्दों का ही नाम रखता हूं। मुझे लगता है नाम ऐसा होना चाहिए कि बस 2 शब्द हों उसमें। हाँ। जैसे शान रखा तो वैसे ही कुछ। हाँ। तो रिकॉल वैल्यू भी बहुत अच्छा होता है। हाँ हाँ हाँ। तो अब बहुत ज्यादा वो था। हम्म, तो अच्छा, मेरे दिमाग में 3 चीजें क्लियर थी। ग्रामोदय, भारतोदय, और यूनाइटेड नेशंस का 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एजेंडा। जी। ठीक। तो मुझे इन 3 चीजों को मिला के कुछ रखना था। तो जब मैं एक दिन क्लास में था, तो कहीं किसी अखबार में, इंडियन एक्सप्रेस में शायद, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, और उस आर्टिकल में लिखा हुआ था एक शब्द, ऋतस्य यथा प्रेत। ऋतस्य यथा प्रेत, उसका मतलब था टू लिव इन ट्यून्स विद इकोलॉजी। एब्सोल्युटली। टू लिव इन ट्यून्स विद इकोलॉजी। और उस आर्टिकल में उन मोहतरमा ने, महिला थी जिन्होंने लिखा था, मुझे नाम नहीं याद है, उन्होंने लिखा था कि एंशिएंट इंडिया में सबसे बड़ा धर्म इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करना था। एब्सोल्युटली। और फिर अच्छा, ये चूंकि इंग्लिश में लिखा था तो मुझे वो अच्छा लगा पढ़ के, तो मैंने ऋत शब्द पर रिसर्च करनी चालू करी। ठीक है, जो मैं थोड़ा सा खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं, तो मैंने शुरू किया, भाई ये क्या। तब मुझे पता चला ऋत है एक कॉन्शियसनेस दैट गोज बियॉन्ड दिस प्लैनेट। बेसिकली ऋत इज अ बैलेंस, इट इज अ कॉस्मोलॉजिकल बैलेंस, कि हमारा पूरा यूनिवर्स एक बैलेंस पर चल रहा है, और वो बैलेंस ही ऋत है। तो उस कॉस्मोलॉजिकल बैलेंस का मतलब, अगर उसको हम अपने अर्थ के हिसाब से देखें, तो इट इज बेसिकली एन इकोलॉजिकल बैलेंस बिटवीन मैन एंड नेचर, एंड नॉट नेसेसरली मैन बट ऑल स्पीसीज एंड नेचर, राइट। और हमारे यहाँ कहा गया है ऋग्वेद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज की जनरेशन के लिए। आप क्लाइमेट एक्शन की बात करते हो, रिथ फाउंडेशन का गोल है डिसेंट्रलाइजिंग क्लाइमेट एक्शन। ओके। रिथ फाउंडेशन का गोल है क्लाइमेट एक्शन के लिए जो बेसिक, मतलब मेकिंग ग्राम पंचायत एज द फोकल पॉइंट्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। एब्सोल्युटली। रिथ फाउंडेशन का गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का लोकलाइजेशन। ऑल ऑफ दिस एक किनारे कर दीजिए, और मैं एक लाइन में रिथ फाउंडेशन का गोल बताता हूं। ऋत शब्द का मतलब क्या है? ऋत शब्द का मतलब है ऋतस्य सत्यस्य, ऋतम सत्यस्य मूलम। हम कहते हैं जो सत्य है। सत्य क्या है? मैं देख रहा हूं आप बैठे हैं, मैं देख रहा हूं ये पेड़ यहां है, ये सत्य है।
यानी कि एग्जिस्टेंस सत्य है, हम्म, हाँ या ना? एग्जिस्टेंस अगर सत्य है तो एग्जिस्टेंस है क्यों? क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस है। अगर ये इकोलॉजिकल बैलेंस ढह जाएगा तो मेरा और आपका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। उस क्योंकि हमारे और आपके एग्जिस्टेंस, हमारा और आपका सत्य उस रित से प्रेरित हो रहा है, इसलिए कहा गया रित सबसे बड़ा धर्म है। प्रिजर्विंग इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रिजर्विंग रित इज द बिगेस्ट धर्मा इन सनातन धर्मा, एंड दैट इज व्हाई रित फाउंडेशन का गोल है बहुत सिंपल, making this ecological balance, making this environmental consciousness, this climate consciousness, this sustainability a lifestyle for all of India. एब्सोल्युटली, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी हम जब बात करते हैं तो सस्टेनेबल लिविंग इज द Yes. मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। और इजंट इट, मतलब एक आयरनी देखिए कि शताब्दियों से हम भारत में ये बात, इट हैज बीन, मतलब इम्बाइब्ड, इंस्क्राइब्ड, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, ऑलरेडी है। हमारे लिए जीने का तरीका है ये। यस, एब्सोल्युटली, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। Yes. अगर वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। Vishwa, the world will achieve sustainable development goals if India will achieve SDGs. India will achieve SDGs if the rural India will achieve its villages. Its 10 lakh villages, 2.5 lakh gram panchayats will achieve SDGs. Our goal as an organization is to ensure that rural India is ready to achieve SDGs, because you need to understand that everything in rural India is sustainable. You just have to awaken that spirit. Actually, our villages is the perfect example of sustainable living. Yes. Absolutely. आप मार्क ट्वेन से लेकर के ये अपना जो रॉबर्ट क्लाइव से लेके और महात्मा गांधी तक, तीनों लोगों ने ग्राम को कैसे डिस्क्राइब किया है, भारत के गांव को, कि ये तो ऑटोनोमस चीजें हैं, अपने आप चल रही हैं। आप सोचिए ना, जब चोल साम्राज्य से लेकर के और चाणक्य के अर्थशास्त्र तक सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, ये सबसे बेसिक यूनिट है, ये ऐसी यूनिट है जो पूरे राष्ट्र को जिलाएगी। न्यू गवर्नमेंट केम इन 2014 और एक एम्फेसिस हुआ स्मार्ट सिटीज का। उस वक्त भी मैं हमेशा यही कहता था, माय लेट फादर यूज्ड टू शेयर विद मी, स्मार्ट सिटीज कैन बी ओनली बी स्मार्ट एज लॉन्ग एज देयर आर स्मार्ट विलेजेस, देयर आर, बिकॉज वहीं से सब कुछ शुरू होती है। एंड रीत फाउंडेशन एंड द एसडीजी गोल्स, मैंने एक the first one I saw, no poverty, and aim to condition the developmental agenda of our villages in the larger context of international agenda, facilitating the confluence of rural and global. जब हम पॉवर्टी की बात करते हैं, पॉवर्टी सिर्फ पैसे की नहीं होती, नहीं, साइकोलॉजिकल पॉवर्टी बिल्कुल होती है, बिल्कुल। पॉवर्टी वैल्यूज की होती है, पॉवर्टी डिप्रिवेशन ऑफ कल्चर की होती है। हमने जब कहा नो पॉवर्टी, हमने कहा रूरल और ग्लोबल का कन्फ्लुएंस, हमारा बहुत क्लियर मतलब था। मेरे गांव में स्मार्ट क्लास चल रही है, प्रोजेक्टर से बच्चे दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्रीज, बीबीसी और नेटफ्लिक्स के वर्ल्ड वॉर और ये सब देख रहे हैं, रामायण महाभारत देख रहे हैं। मेरे गांव के बच्चे अपने गांव के जो लोकल हीरोज हैं, हमारे यहाँ, मैं उन्नाव से आता हूँ, उन्नाव में अवंतीबाई लोधी वहाँ की फ्रीडम फाइटर हैं, उनके बारे में जान रहे हैं, भगत सिंह के बारे में जान रहे हैं, क्लाइमेट एक्शन के बारे में जान रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस के बारे में जान रहे हैं, साथ साथ में ये भी जान रहे हैं कि पीपल क्यों पूजा जाता है। The world is a global village now. यस, We don't तो say it. हम उस स्मार्ट विलेज को बनाने की कोशिश, स्मार्ट विलेजों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका मॉडल क्या है, वो उसका फलक्रम क्या है, ये जो हम सेंटर्स बना रहे हैं, जिन्हें हम लाइब्रेरीज कहते हैं, कम्युनिटी रिसोर्स सेंटर कहते हैं गाँव में, इनके थ्रू हम वो सारी चीजें खड़ी कर रहे हैं। और जो आप कह रहे हो ना, आर विलेजेस, आर विजन इज वेयर रूरल इज इंटैक्ट and global is added without impacting, hampering the identity of rural. And there is so much to talk about. But मैं STG पे बात करूँगा, अंत्योदय. Please share something about it. So अंत्योदय का जो हमारा विजन था वो कोविड से शुरू हुआ जी। जब हमने लोगों को राशन बांटना शुरू किया तो हमें समझ में आया, देखिए अंत्योदय क्या है। अंत्योदय का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लास्ट डिलीवरी टू लास्ट माइल। अंत्योदय का मतलब ये है कि आप ये भी समझें कि वो माइल भी है। आपको पता तो हो आज के युवा में दिक्कत क्या है, आज के समाज में दिक्कत क्या है। आपको मैं भी कुछ दिन पहले उड़ीसा में था, कोरापुट की गरीबी के बारे में पता है, कालाहांडी के बोंडा ट्राइब के बारे में पता है, मलकानगिरी के बारे में पता है, कक्ष के जो वायोर में जो ट्राइब रह रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता है।
नहीं पता है। तो मुद्दा ये है कि लास्ट माइल को पहले पता होना जरूरी है। तो हम द फर्स्ट थिंग इज दैट वी मस्ट एजुकेट आवर पीपल कि भाई इस देश में दो ये देखिए ये इतना विराट राष्ट्र है, यहाँ पर बहुत भारत है, साउथ दिल्ली का भी भारत है, कच्छ का भी भारत है, मलकानगिरी का भी भारत है, मिजोरम का भी भारत है, और उन सब में एक प्राणवायु बह रही है जो हम सबको एक कर रही है। तो अंत्योदय मेरे लिए क्या है कि मतलब मेरा मलकानगिरी से लेकर के और उन्नाव से लेकर के और केरल तक का कोई बहन, कोई हमारी माँ, कोई व्यक्ति जो किसी भी तरह से पॉवर्टी में या किसी भी तरह से हीनता विपन्नता के उसमें है, उसको इस लायक बनाना, और मेरी इस बात को बहुत ध्यान से वो करिएगा, उसको इस लायक बनाना कि वो अपनी और अपने आगे आने वाली जनरेशंस को खुद ऊपर उठा सके। मेरे लिए अंत्योदय वो है। मेरे लिए अंत्योदय फीडिंग नहीं है। मेरे लिए अंत्योदय मतलब किसी को बैठाल करके और कुछ मुफ्त में देना नहीं है। That should never be the हाँ, मेरे लिए objective. अंत्योदय का मतलब है उसको इस लायक बनाना कि वो अपने खुद के पैरों पर देखिए कॉन्फिडेंस क्या होता है। मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं, मैं अपने परिवार का पेट पाल रहा हूं, मैं बाहर जाकर के जॉब कर रहा हूं, और मैं एक महिला की बात कर रहा हूं। जब हमारी गृहिणी, देखिए जननी से बड़ा पावरफुल तो कोई नहीं है। कोई नहीं है। एक माँ से, एक महिला से ज्यादा शक्ति हम आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है ना। हम और आप उनका पीरियड का एक दिन का दर्द नहीं सह सकते। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एक दिन का दर्द हम नहीं सह सकते। ये तो वो देश है जहां पर हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल की पूजा कर रहे हैं कामाख्या मंदिर में। गोवा में हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल के फेस्ट को बना रहे हैं। तो हम उस देश से आते हैं। तो अंत्योदय का मतलब ये है कि हमारी नारियां, हमारी बेटियां, हमारे भाई, हमारे बच्चे इस लायक बन सकें कि वो अपने आप स्वावलंबी बन सकें और अपनी आगे वाली जनरेशंस को ठीक कर सकें। कोविड में अंत्योदय अलग था। बिल्कुल उस समय उन्हें आवश्यकता थी, हमने उन्हें दिया। आज भी हम आपदा प्रबंधन बहुत जगह कर रहे हैं, डिजास्टर रिलीफ बहुत जगह कर रहे हैं। वहां उड़ीसा का में भी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, वहां हमने उनके प्रोस्थेटिक लिम्स लगवाने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिनके हाथ पैर कट गए थे, उनको राशन देना। अभी उत्तराखंड से हमारी टीम आज ही लौटी है, वहां फ्लड रिलीफ करके, वो सब हम कर रहे हैं। बट ये जो है जिस अंत्योदय की आप बात कर रहे हो ना, ये अंत्योदय मेरे लिए मेरा स्वावलंबी भारत है, सेल्फ रिलायंस भारत है ये चीज। आपने कहा कि कहीं पे भी कुछ होता है, ब्रीथ फाउंडेशन गेट्स देयर। इफ समवन हैज टू रीच यू, व्हाट्स द बेस्ट वे टू रीच यू? फोन नंबर। अब तो मेरा अपना पर्सनल नंबर पर्सनल नहीं रहा है। वैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी नंबर है, हमारा इंस्टाग्राम है, हमारा ट्विटर है, लिंक्डइन है। कहीं पर भी कोई आपत्ति होती है आप हम तक पहुंचिए, जो भी हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, उड़ीसा में जिस दिन ट्रेन दुर्घटना हुई, मैं जयपुर से कानपुर जा रहा था, मैं बस में था, रात में 10 बजे मेरे पास फोन आया कि दादा, उड़ीसा से फोन आया, हमारे एक मित्र ने फोन किया, वहाँ हमारी टीम के एक सदस्य थे, उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा दादा आपकी जरूरत है, यहाँ पर बहुत भीषण दुर्घटना हो गई है। उस समय तक हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता था दुर्घटना का। मुझे लगा ठीक है करते हैं, सुबह बात करेंगे। फिर फोन आने चालू हो गए। आप समझिए मैं सुबह 5 बजे कानपुर उतरा हूँ, 7 बजे मैंने अपनी कार ली है, हम 4 लोग कानपुर से उड़ीसा ड्राइव करके 14 घंटे में बालासोर पहुंचे हैं। बालासोर पहुंच कर जब हम पहुंचे थे उससे पहले ही हमने वहाँ पानी दवाई की व्यवस्था करा दी थी। पहुंचने के बाद जो भी पेशेंट्स थे, जो भी उनके पेरेंट्स थे या घर वाले थे, उनके राशन की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, हॉस्पिटल में जाना, हॉस्पिटल में उस दौरान मैं लोगों से मिला, किसके पैर कट गए, किसके क्या कट गए, उनकी लिस्ट बनाना। अब जा करके अभी मैं फिर से उड़ीसा गया था, जिनके पैर कट गए उनके प्रोस्थेटिक लिम्स लगवा रहे हैं, यानी कि उनके पैर लगवा रहे हैं। आप इमेजिन करिए, मैं अभी उड़ीसा में जब गया था तो मैंने जिस जगह पर उनके प्रोस्थेटिक लगने थे तो वहां पे लोगों को बुलाया, वो सब वहां के बैठे थे। और मैं कार से गया यहाँ से, तो जैसे ही मैं उस क्लिनिक में घुसा तो वो सब अंदर बैठे थे जी। मैं 28 साल का हूँ, 50 साल का आदमी, मेरे पैर पकड़ लिए उसने। क्या आप भगवान हो मेरे लिए। आप सोचिए ना, किसी के पैर कट गया, उसने सब, he has lost all hopes। वो दोबारा चल पाएगा ये सपना, ये हकीकत वो अपने सामने देख रहा है। तो एक हमारा वो पार्ट भी है, और वो इसलिए क्योंकि कोविड के दौरान मैं भगवान से एक ही चीज मनाता हूं कि जब तक जीवन रहे इसी ऊर्जा से रहे जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। बिल्कुल, हमारी भी यही प्रार्थना है। हाँ, मतलब जब तक रहे
रेस्टलेस रखना मुझे, मैं रेस्टलेस आदमी हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ देख करके कि यार ये भाई अपना है और इसका पैर कट गया, इसका हाथ कट गया। मैं बिल्कुल, कॉर्पोरेट वाले परेशान हो जाते हैं मुझसे। कई बार ऐसा होता है कि कॉर्पोरेट वाले कहते हैं तुम इतना फोन काहे करते हो, तुम्हारे पास इतना काम है फिर भी तुम, और मैं पर्सनली घुसता हूँ। मतलब इतना काम चल रहा है, आपको तो अब थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि हम लोग कितने फील्ड्स में काम कर रहे हैं, इतना सब कुछ देखने के लिए, लेकिन मैं पर्सनली घुस जाता हूँ। वो उसका दवाई पहुंची कि नहीं, उसका ये पहुंचा कि, कॉर्पोरेट वाले मेरे से कई बार कहते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मतलब एक फ्रेंडली तौर पर जी। कि अनुराग जी आप पर्सनली इतना क्यों घुसते हो यार, आपकी टीम में इतने लोग हैं, वो है, बट नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मुझे फोन कर रहा है, मैं मिला हूं उससे जा करके। और लोग इतना इतना भाव फील करते हैं। कुछ दिन पहले ये जो उड़ीसा का उस विक्टिम थे, उनके अकाउंट में पैसे गए कुछ, जब हम लोगों के उससे, हमारी एक लड़की ने उनको फोन किया पूछने के लिए। उसने रोते हुए कहा कि जगन्नाथ बाबा की कृपा आपके संगठन पर हमेशा रहे। आप वो भाव समझिए ना। तो मतलब बस यही प्रार्थना है कि भगवान इतनी शक्ति दे और हेल्पलेस ना बनाए। मैं बस इतना चाहता हूं कि मैं अपने देश के लोगों के लिए जो कर पा रहा हूं, जो इतना भी सीमित में, ऊपर वाले की दया रही तो बस ये करता, आखिरी समय तक काम करते हुए जाना है सर। इतनी एनर्जी, इतनी प्राणवायु रहे कि मतलब कुछ करते करते ही निकल ले बस। Anurag ji, there is a lot to talk, but two very important aspects for me. Climate has always been, how do I put it? I'm very passionate about it. I believe in it. And I think if we don't focus on sustainability, I don't think we will have a planet left. And frankly speaking, that's the truth. मैं जानता हूँ कि Reith Rural Foundation works on climate and on the education of women. And I think हमारा ये conversation would be incomplete without these 2 points. Education of women, empowerment, employment, your thoughts. कोई भी समाज अपनी महिलाओं को शिक्षित किए बिना विकसित नहीं हो सकता। बहुत सीधी सी बात है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने गांव में ऐसे सेंटर्स बनाने शुरू किए जहां पर हम इंटर कॉलेजेस, प्राइमरी स्कूल के आसपास में गांव से कोई जगह लेते, वहां पर हम एक लाइब्रेरी बनाते। लाइब्रेरी में हम बुक्स देते, पढ़ने की चीज़ें, बैठने की व्यवस्था, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर। हमने क्या किया, हमने देखा कि 2 चीज़ें हैं। पहले तो कि महिलाएं स्कूल्स में एजुकेशन आ रही हैं, कई बार होता है इंटरेस्ट लूज हो जाता है। जी। देखिए एक बहुत प्रैक्टिकल समस्या है। एक लड़की है, वो 14 साल की है, घर में कोई मेहमान आ गया, मम्मी ने कहा एक काम करो, 4 दिन स्कूल मत जाओ, अभी घर पे काम ज्यादा है। ठीक, 4 दिन वो स्कूल नहीं गई, 5वें दिन वो स्कूल गई, उसको समझ में आना बंद हो गया। कोर्स तो अपनी प्रोग्रेस, अपनी गति से चल रहा था। क्या हुआ, उसको उस टॉपिक में, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लूज हो गया। जब इंटरेस्ट लूज हुआ तो कई बार दैट लीड्स टू कि वो फेल हो गई। फेल हो गई तो उसकी शिक्षा बंद हो गई। Because it's ये very clearly tied to that. बहुत हाँ, डायरेक्ट लिंकेजेस। बिल्कुल, ठीक है। how you are performing will lead to whether you will continue your और education. नॉट। हाँ ठीक है ना। तो ये चीज थी, ये चीज मुझे समझ में आई। तो मुझे लगा कि हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर हम कम से कम, अगर वो 5 दिन स्कूल नहीं गई तो उसकी कुछ रेमेडियल क्लासेस हों। हमारी लाइब्रेरीज ने वो शुरू किया। फिर हमें दूसरी चीज लगी, गांव में एक और समस्या है कि यहाँ पर एक हायरार्की बनी हुई है कि फलाने का बच्चा तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ने शहर जाएगा, उसके लिए वो 5-6 हजार रुपए देंगे, ढिकाने का बच्चा अपने गांव के स्कूल में ही पढ़ेगा। तो वो लगने लगा कि अच्छा ये अलग है, ये अलग है। हमने कहा नहीं, गांव शहर के स्कूल में क्या होता है, एक स्क्रीन दिखाते हैं, वो स्मार्ट क्लास देते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं या इस तरह इंग्लिश सिखाते हैं, इस तरह की चीजें। हमने कहा वेट, आई विल प्रोवाइड दैट हियर ओनली। हमने क्या किया, वहां पे भाई पृथ्वी घूम रही है, हमने उनको दिखाया प्रोजेक्टर में। क्या हुआ, नाउ वी वर अपीलिंग टू देयर क्यूरियोसिटी, राइट। वी वर डूइंग इंक्विजिटिव लर्निंग। लोग आने चालू हुए। हमने डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई, मूवीज दिखाई, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये वो सब दिखाया। लोगों का एक ग्रुप बनना चालू हुआ। और उस ग्रुप में धीरे धीरे हमने ये देखा कि जो लड़कियां थीं उनमें एक अलग ट्रेंड देखने को मिला। अच्छा, हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया था कि जैसे मान लीजिए लड़कियां हैं, हमने कहा कि 3 बजे के बाद यहाँ लड़कियां रहेंगी और वो अपना कमरा बंद करके डांस सीखो। वो यूट्यूब से अपना डांस सीख रही हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे जब ये फ्रीडम्स मिलने लगी तो लड़कियां इकट्ठा होने लगी वहां पर एज अ ग्रुप। एज अ ग्रुप। बट एक प्रॉब्लम थी,
प्रॉब्लम ये थी कि अभी भी लड़कियों को ये नहीं लग रहा था कि वो बराबर है। ओके। ठीक। हम्म। अब हम लोगों को लगा क्या किया जाए। हम्म। हमें लगा कि स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहिए। हम्म। ठीक। हम्म। हमने क्या किया, लड़कियों को ट्रैक सूट्स और शूज की व्यवस्था करी। हमारे एक सीनियर थे, उनसे हमने बात करी। आप विश्वास मानिए, पहले दिन 50 लड़कियां हम्म। ट्रैक सूट पहन के और शूज पहन के, और हमने उनको गांव में दौड़ाते हुए पूरे गांव से निकाला, बीच से। हम्म। मतलब जहां पर हमारी लाइब्रेरी थी और एक ग्राउंड तक जाना था, तो हमने कहा डायरेक्ट नहीं जाओगे, गांव से घूमते हुए जाओ। हम्म। वहां 400 लोग बच्चियों की भीड़ लगी, हमें भी खेलना है, हमें भी खेलना है। हम्म। And Brilliant. Hmm. that show gave them this confidence that we are special and we also can play. Hmm. Because you know, sports still in rural India, sports is most of the times think that okay, it's a men kind of thing. ठीक है। तो इक्वालिटी, जो साइकोलॉजिकल पावर्टी की बात मैं कर रहा था ना, हमने साइकोलॉजिकल पावर्टी यहाँ से तोड़ी। विमेन एजुकेशन पर हमने जब काम करना शुरू किया, इन लाइब्रेरीज में महिलाएं आनी शुरू हुई, तो धीरे धीरे हमने 2 ट्रेंड्स देखे। क्या? महिलाओं के अंदर ये था कि जैसे गांव में कई बार होता है ना, बच्चों की जल्दी जल्दी शादी हो जाती है, वो भी आने लगी। उसका छोटा सा बच्चा है, वो भी कुछ सीख रहा है। तो जहां से मैंने शुरू किया था, पहली बात, गांव में वो कम्युनिटी लाइफ। आपको पता है हमारी लाइब्रेरी सबसे बड़ी चीज क्या करती है? आप वहां जाओगे, सर्दी के दिनों में जाओगे, तो आपको सुबह सुबह वहां पे बुजुर्ग लोग मिलेंगे, अखबार पढ़ रहे हैं। वहीं पे छोटे छोटे बच्चे अपना बैठे वो पढ़ रहे हैं, वो उनको कहानियां सुना रहे हैं या अखबार पढ़ के सुना रहे हैं। ठीक है ना? तो वो जो कम्युनिटी लाइफ थी, बड़े छोटे महिलाएं सब एक जगह इकट्ठे होना, एक वैल्यू सिस्टम बनना, एक क्लोज निट सोसाइटी बनना, वो शुरू होने लगा। तो हमारा पहला मोटो तो ये था कि यही स्थापित हो। अब हमारा दूसरा मोटो क्या था कि इनको कंप्यूटर एजुकेशन देनी है, इनको सॉफ्ट स्किल्स देनी है, इनको बोलना सिखाना है। तो हमने क्या किया, हमने कुछ लोग जो हमारे स्टूडेंट्स थे या कलीग्स थे या सीनियर थे, कोई टीसीएस में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, हमने उनसे कहा भाई आप एक काम करो, आप अपना 1 घंटा निकालो, चलो इनको कुछ बेसिक एक्सेल का नॉलेज दो। घर बैठे हम उनको डेटा एंट्री का जॉब दिला सके। सॉफ्ट स्किल्स का नॉलेज दो। हमारी एक यहाँ पर एक भाभी हैं, हमने उनसे कहा, हमने वो एमडॉक्स में काम करती हैं, हमने कहा आप इनको बोलना सिखाइए, कॉन्फिडेंस सिखाइए, सॉफ्ट स्किल सिखाइए। वो शुरू हुआ। आज उसमें से कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो आईसीआईसीआई की कॉल सेंटर में या कहीं दूसरी जगह पर नौकरी पा गई हैं। अब वहां जाते हैं, वो कहते हैं जॉब वाले भैया आ गए। तो आप सोचो ना, कितना बड़ा चेंज है। एक गाँव की बच्ची को 25,000 की जॉब मिल जाए। एक माता जी आई मेरे पास, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कहा, लाला वेके बिहाक चिंता न करे पड़ी। सोचिए कि उसको 25,000 की जॉब मिल गई है, अब उसकी मुझे शादी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, वरना मुझे दहेज ज्यादा देना पड़ता। There's also a change in the mindset, na, because Yes. that's what makes the difference. na? yes. अब वो लड़की इंडिपेंडेंट है, वो कह रही है अरे भैया मुझे ये सब नहीं करना, मैं खुद कमा रही हूँ, जो मुझे लगेगा, मेरे विचारों में है, वो दहेज वहेज नहीं लगा, मैं उससे शादी करूंगी, ये माइंडसेट है। तो वहां से हमने उसको जोड़ा। अब आपका दूसरा सवाल, क्लाइमेट और जॉब्स। जी। देखिए, जब मैं गांव गया था तो एक बहुत बात क्लियर थी, वी हैव टू क्रिएट ग्रीन जॉब्स। Or I think we are making attempts towards that. Yes. Because Even Prime Minister is focusing on the same जी, thing. जी। So हमारा ये था कि हम ग्रीन जॉब्स को प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या सोचा, लॉन्ग बिफोर एनी अटेम्प्ट्स वर मेड टू दिस, हमने कहा कि भाई हम जो फार्मर है, विमेन फार्मर है, उसी को एग्रीकल्चर प्रोसेसर बनाएंगे। तो महिलाएं अभी तक घर में अचार बनाती थी, घर में दलियां बनाती थी, हमने कहा आप इसको कमर्शियलाइज करो। आपका दलिया, आपका अचार शहर में जिन्हें अच्छा खाना है, हेल्दी खाना है, उन तक जाना चाहिए। हमने वहां पर उनको एजेंसी दी, हमने वहां पर उनको फूड प्रोसेसर बनाया, उसकी ट्रेनिंग कराई। अभी भी 4 दिन पहले उन्नाव में हम लोग 70 महिलाओं की ट्रेनिंग करा के आ रहे हैं अचार बनाने की। 4 दिन हुए हैं। ठीक है। हमने वो शुरू किया। अब ये क्या थे, ये विलेज बेस्ड जॉब थे, गांव बेस्ड जॉब्स थे, जहां पर उनके पास अगर एक एक्स्ट्रा इनकम आने लगी तो वो अपने बच्चे को स्कूल भेजने लगेंगे, तो शायद वो शहर मूव ना करें, क्योंकि शहर में 10,000 रुपए कमाएंगे, फीस भी यहां भी नहीं दे पाएंगे, वो रहेंगे कैसे? दैट इज वन, राइट। सेकेंड थिंग हमने क्या किया, हमने ये सोचा कि यार ऐसे तो काम नहीं बनेगा। तो हमने क्या करा, हमने कहा कि हमें अपने गांवों को कार्बन न्यूट्रल बनाना पड़ेगा। कार्बन न्यूट्रलिटी का एक सबसे बड़ा पार्ट हमने पकड़ा, कार्बन फार्मिंग। Now that is a one very interesting part. हमारे देश में मालन्यूट्रिशन है, हमारे देश में एनीमिया है। एनीमिया को अगर मैं आपसे कहूं कि आप गांव की महिला हो, मैं आपका एनीमिया दूर करूंगा,
एनीमिया दूर करने के लिए मैं आपको ही पैसे दूंगा, तो आपको कैसा लगेगा? तो हमने क्या किया, हमने एक ब्लू ग्रीन एल्गी होती है स्पिरुलिना, ठीक है। स्पिरुलिना इज अ सुपर फूड, ओके, जिसको एक समय पर मायन सिविलाइजेशन में फूड के सप्लीमेंट के तौर पे, मतलब फूड के उसके तौर पे यूज किया था कि अगर आपने भोजन नहीं भी किया तो आप उसे, नेचर में पाया जाने वाला हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट वाला चीज है ये स्पिरुलिना, ठीक है। और बहुत ज्यादा न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं ओवरऑल, राइट। एंड साइंटिफिकली प्रूवन थिंग, राइट, बहुत जगह किया गया है। हमने क्या किया, गांव में एल्गी फार्मिंग शुरू करी, कार्बन फार्मिंग, वंडरफुल। छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाए, ठीक है, महिलाओं की ट्रेनिंग कराई। अभी हम लोग उसको एक छोटे छोटे लेवल पे कर रहे हैं। वी आर सीकिंग मोर फंड्स कि हम और बड़ा कर पाएं। अभी इंडियन ऑयल ने हमसे बोला है कि आपको हम और फंड देंगे, आप बढ़ाइए उसको। तो हमने क्या किया कि वो एल्गी पॉन्ड्स बनाए। अब उन एल्गी पॉन्ड्स में दो चीजें हुई। पहला, वो एल्गी एक ट्री से 10 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। तो वी आर क्रिएटिंग कार्बन सिंक, नंबर 1। नंबर 2, हम स्पिरुलिना बना रहे हैं। इफ यू विल पिक अप योर फोन एंड टाइप स्पिरुलिना टैबलेट्स, यू विल फाइंड मार्केट रेट उसका 4000 से 8000 रुपए किलो है। 4000 से 8000 रुपए किलो मार्केट रेट है। हमारी महिलाओं को हमने जॉब नहीं बिजनेसमैन बना दिया। और हमने क्या किया कि आप एक हिस्सा मार्केट में बेचो, एक हिस्सा हमने गवर्नमेंट से बोला कि आप अपनी जो मिड डे मील देते हो या जो आप अपना न्यूट्रिशन देते हो, आप इनसे प्रोक्योर करके इन्हीं को वापस दीजिए। ग्रीन जॉब्स, माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, कार्बन सिंक, And most importantly, sustainable development and sustainable living. बस दैट्स सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल लिविंग। दैट इज द पर्पस, मोटो एंड विजन ऑफ इट। Anurag ji, it has been an extraordinary conversation with an extraordinary personality like you. I pray, we all pray that you continue doing this work. You inspire. I am inspired, and और लोग जुड़ते जाएं, because I think you truly believe in the philosophy of world is one and how we can all come together. That's the true meaning of Bharat. Thank you so much for your time. So that was Anurag Trivedi ji, founder of Shan Foundation, Reeth Foundation, and a true humanist. Thank you so much for listening in. Until next time, stay safe, stay happy. Thank you for listening to the Between Us podcast. This episode was recorded at Ferris Wheel Studio in Gurgaon. Our sound engineers are Rohit Das and Mainak Chakraborty, and our producers are Santosh Kumar and Arnav Dogra. The video was processed by Viewfinder's Edit. Between Us uploads episodes weekly, and we'll see you next time.